subjects in a week. Okay, 4 classes of history, 2 maybe for polity. You're fine with that? Okay. How many of you are new here? Is there anyone new or for demo class? Okay, okay. Okay, then let's start the class. If you have any issues, if you want to discuss anything after the class, I'll be available here at 4:30. Fine. Thank you. Please. डाउनलोड करके खोलेगा ना, डाउनलोड करके खोलेगा और नोट 5 खोलेगा सब। स्टार्ट कर दिया। So hello everyone, I am Radha Gupta and I am going to teach you history in NCERT batch. Okay. So before starting with history NCERT, let me just ask you a few questions. How many of you are from humanities background? You. So you have done your BA. In which subject? So what were the subjects? So you have basic idea about history. That is what I wanted to know. What about you? Okay, political science honors. Okay, good. What about you? You are maths background. Okay, science. You? Maths. So do you people have a basic idea about history? Have you studied history in schools? Okay. Do you find history interesting? That's the good news. Chalo, we'll start history here. Now, since you are in NCERT batch, I am assuming that you all are going for UPSC examination. Okay. So, see, whenever we are studying any book, whenever we are studying any subject, it's very important to understand for which purpose are you studying that. Because when we are talking about NCERTs, NCERTs are meant for school students, people who prepare for various exams, they also read that. But you need to establish what is your purpose, because your way of looking at those books, your derived understanding will differ if your purpose is different. So here we are very clear about the fact that we are going to study NCERT from UPSC examination perspective. Okay, so when we are studying our NCERTs from UPSC examination perspective, we need to be sure about the examination pattern. What are the kind of questions that are being asked in the examination? What is the syllabus of the examination? Those things you should know. See, here we are doing it at foundational level, so we don't have that much of time to go through UPSC questions in detail. Okay, but when I am teaching that, I already have that in mind, that this is what UPSC asks. So the classes will be molded accordingly. जिस टॉपिक के ऊपर यूपीएससी ज्यादा फोकस करती है, जिन एस्पेक्ट्स के ऊपर यूपीएससी ज्यादा फोकस करती है, हम उनको और ज्यादा डेप्थ में करेंगे. ठीक है, तो आप इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में एनसीईआरटी को भी पढ़ेंगे. इज दैट क्लियर? Now, when we talk about studying NCERT, in history it becomes a bit tricky. Why am I saying that? Because there are a lot of NCERTs when we talk about history. There is old NCERT, there is new NCERT. Okay, now the whole question is whether to go through old NCERT or new NCERT. So, when we are talking about it, see, एक तो हमारे पास क्या है, NCERT की books हैं. We have NCERT books. Second, when we talk about school books, there is Tamil Nadu state board books, which are also very popular. Okay, now since you are starting, I'll suggest you to go through NCERT books. I'm not saying that NCERT Tamil Nadu board books are not good. They are also good, but there you will find more focus upon South Indian history. Okay, that is something which UPSC is not asking a lot about. What UPSC is doing, अगर आप Tamil Nadu board वाला पढ़ेंगे तो you can do Sangam age from there. उस पे focus काफी ज़्यादा. You can do Chola age from there. See, when I am teaching, I am going to teach all these things in the class. If I am teaching Chola period, let's say, I'll take references from that book. I'll take references from NCERT books. I'll take references from some other books which are of
higher level. For that, you don't need to worry at all. I'm just clearing some of the confusions before starting the class. Okay, so go through NCERT books first thing. Then here also there is this question whether to go by old NCERT or new NCERT. Now the difference between the old NCERT and new NCERT is that new NCERT is thematic in nature. Okay, what do we mean by thematic in nature? So first chapter, if you look at, अगर आपने स्कूल में ह्यूमैनिटीज से पढ़ाई करी हो, अगर आप 11th क्लास की किताब देखें तो पहली किताब है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री. 12th में आप जाते हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, themes in Indian history part 3. So they'll pick up themes. For example, they'll pick up a theme on, let's say, economy. They'll pick up a theme on polity. They'll pick up a theme on religion. Now they have picked up themes. So if they have picked up themes economy, तो इसमें आपको ये नहीं बताएंगे कि development कैसे हुआ. इसमें they'll discuss it in thematic manner. So they are assuming that you already have a chronological understanding of history. They are not wrong in it because we have been taught history from 6th class onwards. We have already studied that. Problem क्या है, ढंग से पढ़ते नहीं है स्कूल, चीजें याद होती नहीं है. अब आपने 11th का NCERT उठाया, वो तो प्री सपोज करके चल रहा है नॉलेज कि आपको क्या पता है, ऑलरेडी क्रोनोलॉजी पता है. जब क्रोनोलॉजी पता है तो आप क्या समझ सकते हैं, थीम्स समझ सकते हैं. बट यू डोंट हैव दैट आइडिया. इफ यू डोंट हैव दैट आइडिया, दीज बुक्स विल नॉट बी यूजफुल फॉर you because you will keep getting confused. If you have a chronological idea of history, then these are very good books to study. But again, we need to be aware of our purpose of studying NCERT. Keeping that in mind, old NCERTs are good to go. Okay, you will find a lot of questions are also asked directly from NCERT. Were you there in the workshop that I took on NCERT? You can watch it online, it's on YouTube. So if you look at that workshop, I have shown certain questions from 2023 itself, and I showed how I showed the photos of NCERT books as well, जहाँ हमने आपको दिखाया कि ये क्वेश्चन सीधा वहां से पूछा गया है. So when you are reading old NCERTs, that is something which will be beneficial for you. Okay, now when you are reading old NCERT, कौन सी क्लास से आप पढ़े, क्योंकि हमारे पास क्या है, 6th है, 7th है, we have 8th, 9th, 10th, 11th and 12th. All these books are there. I will suggest you to go through 11th and 12th NCERT, not these NCERTs. Why? You don't have that much time, first thing. And if you are reading one thing again and again in different books, it will not make a lot of sense from examination perspective. It's better to read one book multiple times. Okay, so when you are studying 6th class का NCERT, यहाँ पे भी आपको Mauryan period होगा. When you are reading it in 11th, यहाँ पे भी आपको Mauryan period होगा. तो वो तो रिपीट ही हो रहा है ना. वहां पे क्या होगा, वहां पे कम डिटेल्स होंगे, यहाँ पे ज्यादा डिटेल्स होंगे. Since you are already in the class, you have that basic understanding of that period, then you are reading your book. तो आपको समझने में तो कोई तकलीफ होगी नहीं, समझ तो आपने क्लास में ही लिया. Are you getting my point? So when you are already attending a class, it's much wider to read 11th and 12th class NCERT. ठीक है, क्योंकि आपको क्लैरिटी क्लास में ही हो जाएगी, कहीं भी कोई भी दिक्कत है you can ask. Okay, so this is one thing that you need to be clear about. You have to read old NCERTs of 11th and 12th. I'm speaking it with experience. When you will start reading it after attending the classes, it will not be very tough, and you will find that there is probably no need of reading it because those things are already covered in class. Still, I am asking you to go through books because it's very important to read books to develop your answer writing skill. Okay, so that is why read those books as well. Your time, it will not take a lot of time, trust me. When you will study in the class, your concepts will be clear. Your time is going to be much less in reading the books. So don't worry about that at all, but go through the books once. Okay, clarity है इस चीज पे, क्या पढ़ना है ये समझ आया. अब let's talk about history as a subject from UPSC examination perspective. So when we are talking about the examination perspective, we are not talking about the mains, the interview stage. We are talking about two stages, prelims and
Means when we talk about the subject history, where does it fall? When we talk about prelims, history is one of the subjects which is being asked in prelims examination. तो हिस्ट्री यहाँ पर भी पूछते हैं आपको. जो हमारा जीएस पेपर होता है, सीसैट में तो अलग है आपको, जीएस पेपर जो हमारा होता है उसमें हिस्ट्री पूछी जाती है. When we talk about means examination, here also history is asked. What is the paper in which it is asked? GS 1. Okay, so here history is in your syllabus. When you talk about history, indirectly also history is going to be very beneficial for you. Where तो यहाँ तो डायरेक्ट सवाल आता है आपको, इनडायरेक्टली कहाँ बेनिफिशियल होगा? essay में. If you look at essay question paper, you will find that almost every year there are at least 2 essays which are on the theme of history. So if you have a good understanding of history, you will be able to attempt those essays. 2 ही ऐसे हमको लिखना भी होता है. आप अगर थीम देखें तो आपको 2 ऐसे हिस्ट्री से मोर और लेस हर साल मिल जाएगा. ठीक है. दूसरा चीज आपको हिस्ट्री कहाँ हेल्प करता है? लेट्स से दैट यू आर नॉट चूजिंग टू राइट ऑन हिस्टोरिकल थीम्स, यू आर चूजिंग टू राइट ऑन अदर themes. There also you can use historical examples because we have to write a lot of examples when you are writing history. आप morality पे लिख रहे हैं, आप अशोक का धम्म एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हैं, आप गांधीयन फिलोसफी को यूज कर सकते हैं, आप रिलीजियस सिंक्रेटिज्म पे लिख रहे हैं, ऐसे कम्युनलिज्म से रिलेटेड किसी थीम पे लिख रहे हैं, आप अशोक के आइडियाज को वहां पे लिख सकते हैं, आप अकबर के आइडियाज को वहां पर लिख सकते हैं. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट हिस्ट्री बिकम्स वेरी relevant because it is going to indirectly help you in making your essay much more fruitful and much more engaging. Okay, when you talk about society, अगर आप सोशल इश्यूज के जो क्वेश्चंस हैं उसको उठाएं, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. आपसे कम्युनलिज्म आपका एक टॉपिक है जिस पे लगातार सवाल पूछे जाते हैं. when you study history, you study the roots of communalism. When you already know the problem, you will be able to write a much better answer जब हम way forward लिख रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज का जहां से प्रॉब्लम है सोल्यूशन तो वहीं से आएगा ना. विमेन के थीम के ऊपर, जेंडर जस्टिस के ऊपर आपको सवाल मिलेगा ही, मोर और लेस हर साल आपको सोशल इश्यूज में सवाल मिलेगा उसके ऊपर. वो सिचुएशन पे हम पहुंचे कैसे हैं हिस्टोरिकली, हाउ द कंडीशन ऑफ विमेन बिकेम प्रॉब्लमैटिक, वाज इट ऑलवेज द सेम, or there is a course of development in which women were subjugated. So if you know the problem in an in-depth manner, you will be able to tackle it with much more ease when you are attempting questions on social issues. So in solving questions of social issues also, knowledge of history becomes very helpful. So indirectly आपको help वो वहां पर भी करेगा. If you talk about GS4 पेपर, वहां पे भी आपको हेल्प होता है. बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जब आपको पता होगा, लेट्स से उन्होंने गांधी का कोई, उसमें क्या देते हैं, कोट्स दे देते हैं. जो पहला पार्ट होता है, एक पार्ट तो केस स्टडीज का होता है, एक पार्ट में आपको ऐसे आंसर्स लिखने होते हैं. सो इफ यू स्टडी दैट पार्ट, दे आस्क कोट्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, दे आस्क कोट्स ऑफ गांधी, दे आस्क quotes of various personalities. If you know about the historical context in which they are talking about these ideas, attempting those questions will become very easy. Okay, I am not saying that you will be able to write everything just by studying history. मगर आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर बहुत ज्यादा इंगेजिंग हो जाएगा, आपके आंसर में कई सारे डायमेंशंस जुड़ जाएंगे. सो दैट इज वेयर हिस्ट्री हेल्प्स यू इनडायरेक्टली. ओके, गेटिंग इट? सो व्हेन यू आर स्टडीइंग हिस्ट्री, try to study it in an interconnected manner. That is how I do it in the class, but you also have to be engaged in this process, then only it will help you. Clarity है इस चीज पे? तो हमारा एग्जामिनेशन में हमको ये पता है कि हेल्प कहाँ कहाँ करता है. So you can see that history is a very important subject if you look at the examination pattern as well. Directly तो आपको पूछा ही जा रहा है, indirectly भी you will get a lot of questions where knowledge of history is very important. Now coming to the subject itself, कि इसमें क्या क्या चीजें हमको पढ़नी होती है. So there is ancient, there is medieval, modern, art and culture, then you have your world history, and then you have post independence. This is the sub themes when you are studying history from UPSC perspective. Okay, now when we talk about the examination, in prelims examination, which are the areas which are being asked?
these 4 areas are being asked in your prelims examination. They don't ask you questions on world history or post-independent India. Okay. When we talk about mains examination, these arenas become important. They don't ask you direct questions on ancient or medieval. What do they ask you? They ask you ancient and medieval from the perspective of art and culture. They'll not ask you to write an answer on a war that was fought. They'll ask you to write about the culture that was prevalent during a particular period. Okay, so here direct political questions will not be asked from you. What will be asked? Cultural contributions of various kings. ये जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि हम यहाँ पे ये बात क्यों कह रहे हैं. तो आपको यहाँ क्या पूछा जाएगा? Art and culture specific to ancient and medieval period. Okay, see, whenever we are talking about culture, तो वो culture किसी ने बनाया होगा ना. तो वो culture किसने बनाया? Historical context में यही लोग तो बनाएंगे ना. तो जब यहाँ पे पूछ रहे हैं कल्चर से सवाल, तो ये एरिया तो आगे जाएगा, मगर किस एस्पेक्ट में पूछ रहे हैं? कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं, आर्ट के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं. क्लैरिटी है इस चीज के ऊपर. हियर यू हैव टू स्टडी वॉर्स एज वेल. दे कैन आस्क यू, पूछते नहीं है मगर इस पे सवाल पूछा जाता था. ठीक है, क्लैरिटी है इस मामले में. क्या आपसे एस्पेक्ट पूछा जा रहा है? किसी को कोई डाउट है? ओके, तो व्हाट माय प्लान इज, पोस्ट इंडिपेंडेंस आपका पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी के साथ में कवर होता है, बिकॉज दैट इज पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी. विल इन्फॉर्म यू वेदर आई विल टीच दैट और एनी अदर faculty will teach that. That is something that you will be informed about. Coming to these portions, what I plan to do, first I will give you an introduction about ancient Indian history. We'll cover that. Then medieval, then we'll cover that. हम इसको portion wise लेकर के पढ़ेंगे. जब हम ancient पढ़ रहे हैं तो ancient का जो art and culture है वो हम इसके साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी समाज को, किसी भी सोसाइटी को आप उसके कल्चर से अलग करके, आप उसके पॉलिटिक्स से अलग करके नहीं पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो वी विल कवर दोज एस्पेक्ट्स हियर व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. इट विल बी वेरी इजी, ट्रस्ट मी, यू विल स्टडी दैट. शुरू के 1-2 क्लासेस में आपको थोड़ा टफ लग सकता है, बिकॉज दैट इज मोर टेक्निकल. ओके, बट ग्रेजुअली इट इज गोइंग टू बिकम वेरी इजी. नाउ देन वी विल स्टार्ट मिडिवल, उसके साथ उसका आर्ट एंड कल्चर करेंगे. देन वी विल डू मॉडर्न एंड देन वी आर गोइंग टू कवर वर्ल्ड हिस्ट्री. इज दिस मच क्लियर? सो दिस इज द सिलेबस. This is the areas which are being asked in prelims and mains examination. Now let's talk about the approach to study history. Most of the times what I have realized that even when students know things, even when students have studied history, they are not able to formulate their answers. First, second, they are not able to remember a lot of details. They start mugging things up. So they have studied one thing and then they'll try mugging it up, then they'll forget, then they'll again repeat the process. So what I am going to do, I am going to give you a proper framework in which you have to study history. What you have to do, you have to remember that framework. If you are able to remember that framework, writing answers will become much more easier. Revising things will become much more easier. Okay, so let's just do that. This is something that you should copy down as well. When we'll do classes, what is going to be the pattern? I'll make you understand a few things. I'll explain a certain concepts and then I'll dictate the notes. ठीक है, तो वो आपका साथ में समझना और लिखना दोनों होता रहेगा. अभी इसको हम समझते हैं कि हम हिस्ट्री को पढ़ते कैसे हैं. When we are studying history as a subject, why studying history is very important? Apart from clearing the examination, we know about the past. Why knowing about the past is very important? Do we really do that? World War, First World War was fought. Then Second World War was also fought, and a lot of political analysts are saying that we are on the verge of fighting Third World War. So we can try that, but people have been, ignorant enough to repeat the mistakes. That is also one thing. But yeah, you are right.
I am not saying that it's wrong answer. See, when we talk about history, we talk about history at various levels. We have a national history, we have a regional history, we have a societal history, we have our own family history and individuals' history. When we study history, we study it in a national context, but there are a lot of aspects of studying history as well. When we talk about history as a subject, it is very closely related with our identity. कौन है हम आज अगर ऐसे हैं तो हम आज ऐसे क्यों हैं? कोई दूसरा इंसान अगर हमसे अलग है तो वो हमसे अलग क्यों है? Be it at the level of family, be it at the level of a particular region, at national level or at international level. History is very intricately related with our own identity. तो जो हमारा प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है वो हमारा प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऐसा ही क्यों है? When you will study history, you will understand that what we eat today, what we wear today, how we speak today, which language are we using as our medium of instruction, how do we behave with other people, why certain countries are our friends, why certain are our enemies, everything goes back to history. So to know yourself, be it at the level of an individual or be it at the level of an Indian citizen, we need to know our history. Apart from clearing the examination, to know ourselves, to understand ourselves as an individual, as a citizen, we need to have a basic idea of our history. Okay, so that is why I feel that studying history is very important. Okay. If you talk, so there has been this philosopher who said once that if you don't know history, anybody can come and tell you anything and you don't have any way of checking up on it. क्या होता है? ऐसे ही हुआ था, तुम्हें नहीं पता, तुमने थोड़ी पढ़ा है, तो वो भी एक बहुत problematic aspect है. So to check up on a lot of things, we need to know our history. I'll tell you about बेसिक थिंग, एक कहानी सी हम आपको बताते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि हमारे नेशनल आइडेंटिटी के लिए हिस्ट्री क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है. और आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस में भी देखेंगे, जब आप मेंस का क्वेश्चन एनालाइज करेंगे, सो यू विल सी दैट दीज आर द थीम्स व्हिच आर बीइंग आस्क्ड. So do you have this idea that prior to British arrival, not a lot of history was written when we talk about our history today? You know that? तो जब ब्रिटिश आ रहे, if you look at the foundation of ASI, Archaeological Survey of India, it was founded by one of the British officials. If you talk about epigraphy department, जहाँ inscriptions पढ़ते हैं, if you talk about art history department, these people were founding that. Of course, they were not people who were saintly. वो अपने फायदे के लिए कर रहे थे. आपको किसी के ऊपर रूल करना है, तो एक स्कॉलर हैं फूको करके, उन्होंने ये कहा है नॉलेज इज पावर. आपको उस इंसान के स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए. आपको स्ट्रेंथ पता है तो आपको पता है कैसे अटैक करना है उस पर. आपको वीकनेस पता है तो आपको क्या पता होगा कैसे यूज करना है उसको. When we will study modern Indian history, you will be able to place a lot of things together, what I am saying today. When Europeans came here, they wanted to understand Indian history, or wherever they went, they wanted to understand their history. Why did they want to understand their history? So that they know about their strengths, so that they know about their weaknesses, which will help them in ruling these एरियाज. ओके, और उसी से जुड़ा हुआ उनका जस्टिफिकेशन आता था. तो उन्होंने क्या कहा, एक जेम्स फर्ग्यूसन करके व्यक्ति हैं, आपको इन नामों को नहीं जानना है. आई एम जस्ट टेलिंग यू दीज थिंग्स सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री राइटिंग वाज डन एंड व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो जेम्स फर्ग्यूसन इज एन इंडिविजुअल जिनको मानते हैं कि इंडिया में आर्ट हिस्ट्री में उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है. इफ यू गो टू पुणे, यू विल फाइंड अ फर्ग्यूसन कॉलेज एज वेल, यू विल फाइंड अ फर्ग्यूसन रोड एज वेल, विच इज नेम्ड आफ्टर हिम. So Ferguson was an individual who said, why we are ruling you. एक तो आपने सुना होगा white man's burden, कि वो civilized है, बाकी सारे barbarians हैं, तो यहाँ आकर के उनको civilize कर रहे हैं. Apart from that, in the context of India, what they said that you are a country of philosophers and snake charmers. कि सपेरों का देश है आपका, दार्शनिकों का देश है आपका, you don't know how to rule. Why they were saying that? They had Machiavelli the prince. तो उन्होंने क्या बोला, देखो हमारे पास स्टेट क्राफ्ट के ऊपर इतना बड़ा manual. What do you have? You have philosophy. So you philosophize everything. Let us rule. That was their justification. In 1905, a manuscript of Arthashastra was discovered.
when that manuscript of Arthashastra was discovered, it belongs to Mauryan and post-Mauryan period. So we had a particular document on statecraft to criticize them कि भाई आपका तो मैकियावेली, आप बात कब कर रहे हो, 14th 15th सेंचुरी की बात कर रहे हो, हमारे पास तो ये 3rd सेंचुरी BCE में था. A text which is much more detailed when it is talking about statecraft. और इसी के साथ आप क्या देखेंगे, Swadeshi movement. We'll study it when we'll study modern Indian history. And here for the first time we demanded Swaraj. So history is related to our identity. आप अपनी हिस्ट्री को जानते हैं तो आप कॉन्फिडेंट होंगे अपने बारे में. और ये चीज आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रही है, that we started saying that we do know how to rule much before you did. So there is no ideological justification of saying that you are apt to rule us. Are you getting it? समझ आ रहा है आपको ये कनेक्शन कैसे बिल्ड होता है? डिटेल्स आप पढ़ेंगे बाद में, यहाँ पे ये चीज समझिए why studying history is important. Okay, now what they'll start saying, ये हम आपको इन टेक्स्ट्स के बारे में बताएंगे जब पढ़ाएंगे. तो now what they started saying that you do not know how to make a life size statue. लाइफ साइज स्टेच्यू क्या हुआ कि मेरे जितने, आपके जितने, हमारे साइज के बड़ी मूर्तियों को बना पाना. तो उन्होंने क्या कहा, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जब एंशिएंट इंडिया पढ़ाएंगे. दे सेड दैट यू लर्नड इट विद कुशानस. तो कुशान एक रूलर्स थे, जो रूलर्स कहां से आए थे, सेंट्रल एशिया से. तो सेंट्रल एशिया से आए थे, वहीं से अपना ब्रिटिश भी हिस्ट्री ट्रेस कर रहे थे, वहीं से कुशान भी कर रहे थे. तो उन्होंने कहा आपने उनके आने के बाद सीखा है, तो टेक्निकली तो आपने हम ही से सीखा है अगर हम ऐतिहासिक तौर पे देखें तो. सो यू डिड नॉट नो आर्ट, आप लोग इस मामले में अनकल्चर्ड थे. दिस इज व्हाट दे स्टार्टेड saying. What happened? I'll show you this particular statue when I'll teach you Mauryan Empire. So in 1917 a statue was discovered. I'll tell you the story there in the class. It's a very interesting story how the statue was found. But instantly when the statue of Didarganj Yakshi was found, it became very important for national identity of India. Why? Because then we started saying that we already knew the art फ्रॉम मौर्यन पीरियड ओनली. कुशान कब आए, पोस्ट मौर्यन पीरियड में, मौर्यंस के बाद आए, तो हमको वो चीज आता था. फिर क्या बोलेंगे, ठीक है कल्चर था तुम्हारे पास, सिविलाइजेशन नहीं था. अब आप यहां से क्या देखते हैं, एक चीज शुरू होता है, मास मूवमेंट. अगेन वी विल टॉक अबाउट इट. यू विल अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री इज ऑल्सो रिलेटेड टू असर्टिंग योर ओन आइडेंटिटी. ये सब हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे. उसके बाद क्या हुआ, बोले कि तुम्हारे पास सिविलाइजेशन नहीं है, तुम लोग तो बारबेरिक हो, तुमको मूर्ति बनाने आता था. वी हैव इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वी हैव मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, वी हैव ग्रीको-रोमन सिविलाइजेशन. व्हाट डू यू हैव? एंड देन इन 1924 formal announcement of discovery of Harappan civilization. And again you will see that national movement took a very different turn. We became much more assertive in asserting our own national identity, in asserting our demands before British. So knowing your history also empowers you in demanding a lot of things. So that is also one of the reasons one should be aware of their own history. One should be aware of their own culture. हम क्या करते हैं, हम इमिटेट करते हैं दूसरे कल्चर्स को. क्यों इमिटेट करते हैं? क्योंकि अपने खुद के कल्चर के बारे में, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में हमको नहीं पता होता है. इफ यू लुक एट पीपल, खाने में हम देख ले, पिज्जा खाना कूल होता है. I'm not making a comment on anything. I'm just saying why people are very ashamed of their own culture, because they don't know their historical importance. If you know your own, the historical importance of your own culture, you will be much more assertive about it. You will be much more respectful about it at least. So that is why history, studying history also becomes very important to develop your personality. पर्सनालिटी टेस्ट ही तो होता है ना जो हमारा इंटरव्यू होता है. तो हम जब अपने कल्चर के बारे में जानेंगे, हम जब अपने हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प अस देयर एट दैट स्टेज, बिकॉज इट विल मेक यू मच मोर कॉन्फिडेंट. ओके, नाउ कमिंग बैक हियर, so you know why history is important. समझ आ रहा है? Now when we talk about history, what is the aspect that we study? When we talk about history, there are two components. One is time and the second is space.
what is the meaning of time and space? When we say that this happened, where did it happen? When did it happen? These are the two components that you always need to know. Time and space. Whenever we are talking about history, हम हवा में नहीं बात कर सकते अरे ये हुआ था, कब हुआ था और कहाँ हुआ था. ये दो चीजों को हमको जानना बहुत जरूरी है. Okay, so when we talk about space, that means geographical space. आप 2023 का पहला क्वेश्चन देखिए. What was asked? How geography impacts the making of ancient Indian history? They have asked you a very basic question. When you start studying history, you need to know about these two things, time and space. And this is where the question was coming from. Okay, so always remember these two things, where and when. When का मतलब ये नहीं है कि आपको ये याद रखना है कि 1 मई 2024, ये नहीं याद रखना. Broadly remember the centuries, in which century a particular empire is situated, because UPSC is not concerned about dates. SSC का एग्जाम नहीं है. अगर आप UPSC के क्वेश्चंस को देखिए तो they are not asking you when did Ashok rule. They are asking you about Ashoka's Dhamma policy. Okay, so you need to have that conceptual clarity while studying history, but you should also know which century we are talking about. कि बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं तो 6th century BCE में ओरिजिन की बात करें. That is something that you need to know. वो तो बेसिक चीज है, उतना तो याद रख ही सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है. See, if there is a very important date, then you should remember it, not all the dates. Okay, is this clear? Okay, let's continue. So time and space. Now when we are studying history, look at various aspects. Economic aspect, political aspect, social aspect, cultural and religious aspect. If you talk about ancient Indian history, medieval Indian history, at a lot of times religion and culture overlapped. That is why I have kept it together. Okay, so just understand here how to approach history. Then we will start with the syllabus. Now when we are talking about economy, economy में क्या क्या चीजें आती हैं? किसी भी जगह की अगर हम economy की बात करें, बहुत बेसिक चीज हमारी economy में क्या होगी? कॉइन्स क्यों होंगे? इंपॉर्टेंट क्यों है कॉइन्स? ट्रेडर्स के लिए. ठीक है, ट्रेडर्स ट्रेड कैसे करते हैं? कब कर पाएंगे ट्रेड? मार्केट कब होगा? ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मार्केट होगा कब? मार्केट होने के लिए क्या जरूरी है? किसकी जरूरत है? इंडिविजुअल. ठीक है, इंडिविजुअल की तो जरूरत है, लोग ही करेंगे. देखिए बहुत बेसिक चीज ये समझिए. व्हेन वी आर लिविंग इन अ सिटी, I will take the example of COVID-19 period, when the virus hit and supplies were not present in the cities. People started going back to their villages. People who could have gone back, they went back. A lot of people were forced to go back. Why people go back to their places? Suppose आज दिल्ली में अनाज आना बंद हो जाए, हम रह पाएंगे क्या यहाँ पे? एक शहर कब सरवाइव करता है? अ सिटी थ्राइव्स ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज. बट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिटी इटसेल्फ यू नीड एग्रीकल्चर. वी आर ईटिंग बिकॉज somebody is producing for us. We are not producing grains for ourselves, but our basic need is grain itself. You need to eat to survive. अगर हमको खाना आना बंद हो जाएगा शहरों में, हम सब अपने अपने गांव वापस चले जाएंगे, या गांव जिनके पास नहीं है वो खोजने लग जाएंगे. तो किसी भी इकोनॉमी को फंक्शन करने के लिए सबसे प्राइमरी चीज क्या है? एग्रीकल्चर. If somebody is not producing for you, you will not be able to produce goods, you will not be able to do trade. So the primary thing in any economy is agriculture. Somebody needs to प्रोड्यूस. समझ आ रहा है ये बेसिक चीज? एग्रीकल्चर है. अब एग्रीकल्चर, आई विल टेल यू द प्रोसेस कि कैसे हम एग्रीकल्चर से ट्रेड की तरफ जाते हैं. इट्स अ हिस्टोरिकल प्रोसेस. व्हेन वी विल स्टडी द सिलेबस,
we'll study that process as well. But here just understand the aspects that you need to remember. ठीक है, तो एग्रीकल्चर है. अब एग्रीकल्चर के बाद से क्या होगा, एग्रीकल्चर में क्या होगा? When we talk about agriculture, what are the things that we see? सबसे पहले तो उगा रहे हैं हम उसको. आपने कहा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, किसका? क्रॉप्स का. क्रॉप्स. See, go back to the basics and then you will not have to mug up. If you understand the basics, you will not have to mug up at all when you are talking about history. कुछ चीजें हर जगह याद रखनी पड़ती हैं. अब आप ये नहीं बोल सकते कि ये फ्रेमवर्क ही कैसे याद रखें, वो तो याद रखना ही पड़ेगा, मगर बहुत सी चीजें आपको समझ आने लग जाएंगी. सबसे बेसिक चीज क्या होगी एग्रीकल्चर में? क्रॉप. आप उगा रहे हैं कुछ, क्या उगा रहे हैं? ग्रेन्स उगा रहे हैं. कई सारी चीजें उगा सकते हैं. यू कैन प्रोड्यूस ग्रेन्स फॉर ईटिंग, यू कैन प्रोड्यूस क्रॉप which are meant for let's say market purpose, कि आपने कपास उगा लिया तो उससे आप कपड़े बना रहे हैं. आपने इंडिगो उगा लिया, उससे आप नील बना रहे हैं. तो crops which are meant to be eaten, crops which are meant for market uses, but the basic thing is production of crops. Now understand one thing, we started, let's say in the course of human history, we started producing certain grains. अब आज हम बना रहे हैं, आज कोई राजा है, कोई रानी, कल वो बदल गए, तो क्या हम वो अनाज उगाना बंद कर देंगे? नो. राजे रजवाड़ों के साथ कॉमन लोगों की लाइफ तो बदलती नहीं है. दैट इज गोइंग टू बी द सेम. नाउ इफ यू स्टडीड व्हाट वर द क्रॉप्स which were being sown at one particular period, आपको अगले में वो रटने की जरूरत है क्या? वो तो चलता जाएगा ना. किसी पीरियड में कुछ नया ऐड हुआ, let's say in 16th century potatoes were introduced in India, then that is something which you need to. Otherwise in every period you don't need to study about agriculture. You already know that this was the crop which was being grown in this period, also people must be growing this particular crop. Clarity है इस चीज के ऊपर. तो इसको इस तरह के फ्रेमवर्क से समझिए. So first thing that we need to know, that is crop. How do we produce a crop? What is the technique? Second thing, understand about the technique. See, अगर आप इस फ्रेमवर्क से याद रखेंगे ना, आपके बहुत सारे एग्जांपल्स भी निकल जाएंगे जो आपको लिखने हैं. अभी तो हम फ्रेमवर्क समझ रहे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है आपको. जैसे जैसे हम पढ़ना शुरू करेंगे आपको इसका सेंस मेक होने लग जाएगा. ठीक है. टेक्निक में क्या है? आप प्लाउज यूज कर रहे हैं क्या? Whether you are using plows, whether you are using animals, whether you are using tractors, let's say, तो क्या चीज आपका टेक्निक है? That becomes very important when you will study Buddhism. Why Buddhism focuses so much upon non-violence? Technique, kettle. Kettle became very important. People started practicing agriculture at large scale. When they started practicing agriculture at large scale, the technique was using kettle in agricultural process. They will not support sacrifice. They will support a religion which is talking about not sacrificing the animals. समझ आ रहा है? तो ये सारी चीजें कैसे इंटरकनेक्टेड होंगी किसी सोसाइटी में, दैट इज ऑल्सो समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट. जब हम क्लासेस करेंगे तो वो आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा. टेक्निक में एक तो ये हो गया. दूसरा क्या टेक्निक में आएगा? इरिगेशन. वेदर वी आर डिपेंडेंट अपॉन रेन फॉर इरिगेशन पर्पस, वेदर वी आर यूजिंग वेल्स, वेदर वी आर यूजिंग कनाल्स, वेदर वी आर यूजिंग द रिवर वाटर, एंड यू विल सी that from this aspect in prelims questions have been asked. 2023 कि कौन सा विजयनगर का राजा है जिसने डैम बनाया and he constructed a lot of canals. That was a question which was asked. Arhatta, a term related with irrigation technology, was asked in prelims examination. Okay, so these are the themes on which UPSC is also focusing. इसके डिटेल्स हम आगे पढ़ते रहेंगे और वहीं आपको अरहट्टा भी आएगा, वहीं आपको कनाल्स बनाना भी आएगा, but this is the basic framework. Now what you have to do?
You understood what is the crop, you understood what is the technique when we are sowing the seeds, what is the technique when we are practicing irrigation. Now if something new is happening, you will just add it here. Otherwise the same thing is getting repeated again and again. So when you have studied it in Mauryan period, you don't have to read it in post Mauryan period, you don't have to read it in Gupta period. वो आपको पता है कि अरे ये तो हमारा already prepared है. Until or unless something new is being introduced, you don't have to worry about it. Is this clear? So first crop, second technique. What else will be there? Who is producing it? क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? फार्मर्स, पेजेंट्स, दे आर प्रोड्यूसिंग इट. तो हमको पेजेंट्स के बारे में जानना होगा, किस तरह के पेजेंट्स हैं, वेदर दे आर ओनिंग देयर ओन लैंड और दे आर पेइंग रेंट फॉर दैट. सो द रिलेशन बिटवीन पेजेंट एंड state, that is another sub theme that we need to understand. In colonial period, that is something which is changing, and you will see that in mains a lot of questions have been asked on this particular theme, because the relationship between the state and producer changed. समझ आ रहा है ये चीज? तो वहां से आपको बहुत सारे उस पे 3 सवाल अभी तक. If I talk about questions from 2024 to 2023, you will see that 3 questions have been asked directly or indirectly on this sub theme when we are talking about मेंस एग्जामिनेशन. ठीक है, तो तीसरा चीज आपको ये समझना है, व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पेजेंट एंड द स्टेट, यहां आपको क्या याद रखना है? व्हाट आर द काइंड ऑफ टैक्सेस दैट आर बीइंग पेड, व्हाट इज द टाइप ऑफ लैंड. नाउ इस पर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे. If you want to understand it in detail, there was this session that I took. आप YouTube लाइव पे जाएंगे, आपको मिल जाएगा, आप वहां पे उसको डिटेल में देख सकते हैं. प्रीलिम स्पेसिफिक सेशन है वो, कि किस तरह के सवाल प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं. ओके, सो हियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेजेंट्स, व्हाट आर द टाइप ऑफ टैक्सेस दैट पेजेंट्स आर पेइंग टू द स्टेट, व्हाट इज द टाइप ऑफ लैंड दैट इज बीइंग ओन्ड बाय द पेजेंट. इन थीम्स को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा. ठीक है, क्लैरिटी है इस चीज के ऊपर. सो रिमेंबर दीज बेसिक थिंग्स. इफ यू आर एबल टू रिमेंबर दीज बेसिक थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी क्लियर. आर यू राइटिंग इट डाउन साइमल्टेनियसली? जस्ट राइट दीज थिंग्स, क्योंकि इसमें डिटेल्स हम जब पढ़ेंगे आई विल डिक्टेट यू. हियर जस्ट राइट दीज थिंग्स. इन इकोनॉमी फर्स्ट इज एग्रीकल्चर. In agriculture, what are the sub themes that we need to remember? Crops, technology, the relationship between peasant and state. इसके सब थीम्स क्या होंगे? प्लाउ एंड इरिगेशन. इसके सब थीम्स क्या होंगे? टैक्स, लैंड. बिल्कुल करती है. बिल्कुल, दैट यू विल स्टडी द क्रॉप्स. क्यों कुछ एरियाज में आपको कॉटन उगाए जा रहे हैं, क्यों कुछ एरियाज में राइस उगा रहे हैं, क्यों कुछ एरियाज में व्हीट उगा रहे हैं. सो द नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी इज मस्ट व्हेन यू आर स्टडीइंग हिस्ट्री. तो वो चीज जब आप टाइप्स ऑफ वेरियस लैंड्स पढ़ते हैं, व्हेन यू या टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ते हैं, व्हेन यू स्टडी ज्योग्राफी, दैट इज अ नॉलेज व्हिच यू कैन एम्प्लॉय हियर. Or again, when you will solve questions, now that knowledge comes handy. That becomes very helpful if you are able to interrelate the two subjects. इसीलिए हमने आपसे कहा वो PYQ एनालिसिस अगर आप देखेंगे ना, तो आपको उससे हेल्प मिलेगा काफी समझने में चीजों को. इस स्टेज पर दो you will not be able to solve it because you have not attended the class, but you will understand the technique to solve it. ये लिख लिया आपने? एग्रीकल्चर के साथ व्हाट एल्स डू वी डू? पेस्टोरलिज्म और एनिमल हस्बेंड्री. सो विद एग्रीकल्चर, प्लाउ, कैटल को एम्प्लॉय कर रहे हैं. सो व्हाट आर द एनिमल्स दैट यू आर डोमेस्टिकेटिंग? दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोनॉमी. सो हियर व्हाट डू यू नीड टू नो? व्हाट आर द एनिमल्स which people knew about, at the same time which animal did they not know about. For example, when we will study Harappa, they did not know about horses.
and that is a question which was asked in 2016. तो उसमें आपको उन्होंने वही चीज पूछ लिया. तो क्या जानवर के बारे में जानते हैं और किसके बारे में नहीं जानते हैं? Which are the animals which are very important? For example, for Aryans, cows and horses were very important. So those are certain things which you should know about. अगर किसी जगह पे बहुत ज्यादा emphasize किया है किसी एक particular animal के ऊपर, so that you should know. Or if at certain places one animal is strikingly missing, for example in the case of Harappan civilization, horses are मिसिंग, तो आपको याद क्या रखना है? एक्सेप्शन. क्योंकि मान लीजिए बेसिक चीज आप समझिए, जो चीज हर जगह ही मिल रही है उसके बारे में यूपीएससी आपको 4 ऑप्शन क्या देगी? 4 ऑप्शन तो उसके बारे में देगी ना जो यूनिक है. तो यू नीड टू नो व्हाट आर द एनिमल्स दे न्यू अबाउट एंड व्हाट वर द एनिमल्स दे डिड नॉट नो अबाउट. सो एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ animals, that is something you need to know. अब this also you need to study at one time. एक बार आपने पढ़ लिया कि क्या क्या एनिमल्स इंसानों को पता थे, वही चीज आगे कंटिन्यू होगी. किसी पीरियड में कुछ नया इंट्रोड्यूस हो गया, किसी पीरियड में कुछ एब्सेंट हो गया, तो सिर्फ वही याद रखना पड़ेगा आपको. दोबारा आपको इस थीम को पढ़ने की जरूरत नहीं है once you have studied it in one particular period. Is this clear? So you need to know about this. यूसेज ऑफ एनिमल्स. क्या यूसेज है एनिमल का? शीप को वुल के लिए यूज कर रहे हैं, वेदर दे आर यूजिंग एनिमल्स फॉर द पर्पस ऑफ कंज्यूमिंग देयर मीट और देयर मिल्क, और दे आर बीइंग यूज्ड इन एग्रीकल्चर, और दे आर बीइंग यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग पर्पस. दीज थिंग्स यू शुड नो. ये बहुत बेसिक चीज है, ये इसमें कुछ आपको हिस्ट्री पढ़ने का जरूरत नहीं है. ये बेसिक है कि अगर लेट्स से एनिमल्स बफलो है तो उसको मिल्क के लिए यूज करते होंगे. इफ देयर इज अ हॉर्स, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते होंगे, ठीक है, या वॉरफेयर में यूज करते होंगे. सो दीज आर बेसिक थिंग्स. यू नीड टू ऑल्सो थिंक अबाउट दीज थिंग्स. व्हाई डू वी डोमेस्टिकेट सर्टेन एनिमल? देयर इज अ पर्टिकुलर यूसेज ऑफ दैट एनिमल इन आवर लाइव्स, देन ओनली वी आर डोमेस्टिकेटिंग इट. तो इन बेसिक चीजों को साथ में सोचते हुए हमको चलना है, ठीक है. सो दिस इज अबाउट pastoralism. Now the third theme in agriculture will be craft production. So let's say there are 10 people who are practicing agriculture. आप मान लीजिए हम ही लोग हैं, हम लोग एग्रीकल्चर करना शुरू करते हैं. ये जो ग्रुप है, इन लोगों ने जितना उगाया वो इनफ है इनके खाने के लिए. ये क्या करेंगे? They don't need to produce. What do you people do? You will help them in agriculture by producing crafts. For example, if you are practicing agriculture, आपको implements चाहिए होंगे agriculture के लिए. When we are producing grains, we'll cook them. Then we are going to eat it. We'll store the grains. So one of them can become a potter. One of them can become an iron smith. तो वो क्या करेंगे? वो उन चीजों को बनाएंगे जो सोसाइटी के लिए जरूरी है. One of them will start specializing in making houses, because when you are practicing agriculture, you cannot move around. You have to live at one place. One of them can specialize in let's say making clothes. So that is how craft production will start. Are you getting it? We'll discuss this process जब हम क्लास करेंगे. तो I am just giving you the basic idea how these things are interrelated. Okay, so here what do you need to know? यहाँ एक चीज हम याद कर लेंगे, कौन सा क्राफ्ट प्रोड्यूस हो रहा है. Now here also you can apply basic logic. If you understand a particular society, आपको उसके नीड्स समझ आएंगे. किस चीज का प्रोडक्शन होगा? जिस चीज की उस समाज को जरूरत है उसी चीज का तो प्रोडक्शन होगा ना. फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारी सोसाइटी में हमारे आसपास क्या चीजें हैं जिनकी हमको जरूरत है? कोई और सोसाइटी होगी जिसकी जरूरतें अलग होंगी, तो वहां पे यही चीज काम नहीं करेगा. मेट्रो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिल्ली. इट विल नॉट बी इंपॉर्टेंट इन अ विलेज. लोगों को नहीं करना है इतना ट्रैवल,
उतनी बड़ी जगह ही नहीं है जहां पे मेट्रो की जरूरत पड़े उनको, उनका परचेजिंग पावर इतना नहीं होगा कि शायद वो 30 रुपए दे सके। तो बहुत सारी चीजें किसके ऊपर डिमांड करती हैं, किसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि हमारे सोसाइटी का डिमांड क्या है। तो इफ यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक नेचर, हम क्लास में मान लीजिए डिस्कस कर रहे हैं एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज एन अर्बन इकोनॉमी, तो अर्बन इकोनॉमी का नीड अलग हो जाएगा, उसके हिसाब से उनका क्राफ्ट हो जाएगा। जो रूरल इकोनॉमी है उसका नीड डिफरेंट हो जाएगा। आई विल एक्सप्लेन दीज थिंग्स हियर, जस्ट अंडरस्टैंड दी themes. Okay, so you need to understand what are the crafts that are being produced in a particular society. Who is producing it? Crafts people. In books you will find the term craftsmen. Let's use a gender inclusive terminology because women are also involved in the process, so it's high time that we acknowledge their contribution as well. So we'll use this term crafts people. So who are these crafts people who are producing these craft? That is also something that we need to know. What is the relation that they share with the state? Again, on this theme also questions have been asked. What is the relation they are sharing with the state? इससे जुड़े हुए हमारे terms क्या हैं? इस चीज को prelims में बार बार पूछा है. So again, you will need to remember those terms at once and it will be helpful in the coming time as well. कि आप एक बार एक पीरियड में पढ़ लिया, आगे वही चीज आपको रिपीट होगी. That is why I am giving you this framework. Because if you don't have this framework, what happens कि हमने हड़प्पा में पढ़ा एक ही चीज को, उसी चीज को हम रिपीट कर रहे हैं आगे, वैदिक में भी रिपीट कर रहे हैं, आगे हम उसको मौर्यन में भी रिपीट कर रहे हैं. तो इस रेपिटेशन से आप बच जाएंगे. आपको क्या होगा, ठीक है, ये दिस सेट ऑफ नॉलेज आई ऑलरेडी हैव, व्हाट इज समथिंग व्हिच हैज चेंज्ड, लेट्स लुक एट दैट. ओके, क्लैरिटी है आपको इस चीज में, सेंस मेक कर रहे हैं. चलिए, so here you need to know about these things. Relationship between craftspeople and state. What are the terms related with it? Now what will happen? There is a set of people who have grains. There is a set of people who have certain craft products. They will trade. They will exchange the goods. क्योंकि इनको खाने की जरूरत है, उनको लेट से पॉटरी की जरूरत है, उनको घर की जरूरत है, उनको एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट की जरूरत है. दे विल इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड व्हाट दे आर गोइंग टू डू, देन दे आर गोइंग टू कंडक्ट ट्रेड एंड दैट इज हाउ ट्रेड कम्स इन प्लेस. नाउ हियर वॉट एवर यू आर सेइंग, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, एक्सचेंज कर रहे हैं, दोज थिंग्स विल कम हियर, बट द प्रोसेस विल स्टार्ट वेयर, फ्रॉम producing grains itself. From there you are going to craft production, from there you are going to come to trade. Now what kind of trade can take place in a society? What are the types of trade that will take place? अगर हमने बात किया, बेसिक चीजों पे बात करते हैं. अगर हमने बात किया कि कुछ लोग जो हैं वो ग्रेन उगा रहे हैं, गांव में रहते होंगे, विलेज, there are people who are producing craft, so that area can gradually turn into a city. ये दो तरह का हमारा सेटअप होगा. वन विल बी अ विलेज सेटअप, वन विल बी एन अर्बन सेटअप, दैट विल बी कॉल्ड अ सिटी. नाउ people will do trade inside the village as well. So in a village trade can take place. Let's say किसी ने दाल उगाया है, किसी ने चावल उगाया है, किसी ने सब्जी उगाई है, किसी ने गेहूं उगा लिया, वो आपस में एक दूसरे के साथ में ट्रेड कर सकते हैं. That is one type of trade that will take place. The other type of trade that can take place is between a village and a city. Another kind of trade that can take place is between two cities. मान लीजिए जैसे बनारस है, कपड़ों के लिए बहुत फेमस है, कोई ऐसा जगह हो सकता है जो कि मोतियों के लिए बहुत फेमस हो, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड कर लेंगे. समझ आ रहा है कि उनका स्पेशलाइजेशन क्या है और दूसरे वाले का स्पेशलाइजेशन क्या है. सो दे विल ट्रेड विद ईच अदर. दैट इज अनदर वे ऑफ कंडक्टिंग ट्रेड बिटवीन अ सिटी टू अ सिटी. ऑल दीज थिंग्स आर टेकिंग प्लेस internally.
जब हम लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दिस इज द काइंड ऑफ इंटरनल ट्रेड दैट विल टेक प्लेस in a particular village, in between a village and a city, between a city and a city. मगर ये कहाँ हो रहा है? एक पर्टिकुलर जगह है जिसके अंदर हो रहा है. दूसरा ट्रेड क्या होगा? External, when two nations are going to conduct trade with each other, when two civilizations are going to conduct trade with each other, so that will be external trade. So we have to study about two types of trade. One is internal trade, one is external trade. Okay, clarity है इस चीज के ऊपर. Now here also you don't need to mug up a lot of things. Why am I saying this? There are certain things which we have been producing in India for centuries, and that is what our specialization is. For example, spices. We have been producing spices for eternity. Go to Europe, they always need spice. So if you talk about let's say trade between India and Europe, आप बात कर रहे हैं let's say कि हम बात करते हैं कुशान कि ट्रेड इज टेकिंग प्लेस बिटवीन कुशानस एंड रोमन्स. तो इंडिया से क्या कुशान का है? इंडिया में. रोमन्स कहाँ की हम बात कर रहे हैं? यूरोप और सेंट्रल एशिया की बात कर रहे हैं. उनको क्या चाहिए? स्पाइस. तो हम उनके साथ में ट्रेड कर रहे हैं तो हम उनको देंगे क्या? स्पाइसेस. दैट इज व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग एंड दे नीडेड इट टू प्रिजर्व द मीट. सो आपको बेसिक लॉजिक से ये चीज समझ में आ गया कि हम स्पाइसेस हमेशा से प्रोड्यूस करते रहे, उनको स्पाइसेस की जरूरत रही है. तो हमने हिस्ट्री में दो चीज की बात की है, टाइम एंड स्पेस. स्पेस इज गोइंग टू बी द सेम. वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड कंडक्टिंग ट्रेड विद ईदर सेंट्रल एशिया और यूरोप. टाइम इज गोइंग टू चेंज. अब कोई भी टाइम हो, हमारा प्रोडक्शन तो अलग नहीं हुआ, हम स्पाइसेस प्रोड्यूस करते रहे और उनको स्पाइसेस की जरूरत रही है. तो क्या होगा? अगर हमको ट्रेड कमोडिटी पढ़नी है तो हम उनको स्पाइसेस दे रहे हैं, हम उनको टेक्सटाइल दे रहे हैं, कॉटन. हमारे यहाँ कॉटन का प्रोडक्शन होता रहा है हिस्टोरिकली एंड दे नीडेड इट. सो बेसिक लॉजिक से हमको समझ आ गई चीजें, हमको इसको रटने की तो जरूरत नहीं है. ट्रेड कमोडिटी क्या है हमने समझ लिया, हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सामने वाले को जरूरत क्या है. तो हिस्टोरिकली you don't need to mug it up in every period. You already understand that this is something which is important. When you study modern Indian history, you will understand the importance of spice and textile. वहीं से आपको पूरा colonization का process ही शुरू हो रहा है. तो historically ये चीजें important रही हैं and they have determined a lot of historical developments as well. This is something that you will study eventually. हमको इंडिया में क्या चीज बाहर से चाहिए था? नहीं, ये क्या करते हो उसका? हम बात हिस्ट्री की कर रहे हैं, वो तो अभी के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है. बट यू आर एट द राइट प्लेस. थीम की अगर हम बात करें, आप ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, उसके लिए चाहिए ना आपको पेट्रोल, आना जाना है. हमारे पास हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो इंडिया में अच्छी नस्ल के घोड़े नहीं मिलते, लेकिन आपको कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो घोड़े चाहिए. हाथी पे बैठ के तो जाएंगे नहीं. अगर आपको किसी जगह जल्दी पहुंचना है, यू नीड हॉर्सेस, गुड क्वालिटी horses. In India, horses are present, but they are not of good quality. Why good quality horses are needed? Let's say I am ruling from Pataliputra and my empire is still Mysore or my empire is still Gandhar. हमको इंफॉर्मेशन तो कम्युनिकेट करना होगा ना. अब गंदी नस्ल के घोड़े या हाथियों पे तो इंफॉर्मेशन नहीं कम्युनिकेट करेंगे. उसके लिए हमको क्या चाहिए? स्विफ्ट हॉर्सेस. तो हिस्टोरिकली हम घोड़ों को बाहर से खरीदते रहे हैं. तो हमको एक कमोडिटी समझ में आ गया, बेसिक नॉलेज है कि इंडिया में अच्छी नस्ल के घोड़े नहीं मिला करते थे. हॉर्सेस वर इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ स्विफ्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. सो वी आर गोइंग टू गेट हॉर्सेस फ्रॉम आउटसाइड. तो हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज तो आपको बेसिक नॉलेज से समझ आ जाएगा. Again, you don't need to mug it up. If at certain period some new thing is getting added, that is only something which you need to add in your notes or in your knowledge. Otherwise, things are going to remain the same historically. Is this much clear? तो समझ आ गया आपको. ट्रेड का पैटर्न भी यही होगा.
इंटरनली क्या होगा, इनसाइड अ विलेज, विलेज टू सिटी, सिटी टू सिटी. एक्सटर्नली क्या होगा, बिटवीन टू civilizations or between two countries. Now this is something which will largely remain more or less the same. यहाँ पे भी हमको क्या पता है कि प्रोडक्ट्स तो सेम ही है भाई, हम ये उगाते रहे, हम ये बेचते रहे. एक पर्टिकुलर चीज है जो हमारे पास हिस्टोरिकली नहीं रही है, हम उसको बाहर से लेते रहे. नाम क्या बदलेगा एम्पायर का, कमोडिटीज तो सेम ही रहेंगी ना, बी इट ऑफ इंपोर्ट, बी इट ऑफ export. Are you getting it? So here, once you have understood it, you don't need to mug it up again and again in various periods. Is this much clear? Now, so here you will talk about internal and external trade. Here you need to क्या themes हमको याद रखने हैं. We need to remember products of import and export. Here we also need to know about coins. What facilitates trade? Making of roads, issuing uniform coins. So here coins are going to come into the picture. Coins के ऊपर भी आप देखेंगे prelims में भी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे फनम क्या होता है. फनम is a term which used to be used for a coin in Vijayanagar Empire. So they have asked you a question on terms related to coins. So what are the terms which are being used? That is also something you need to understand. Clarity है इस चीज में, तो इसको ध्यान में रखिएगा. आप अगर मेंस का क्वेश्चन देखें तो उसमें भी आपको पूछा है, गुप्त पीरियड के कॉइन्स के ऊपर आपको आंसर लिखने पूछा है, मिडीवल इंडियन कॉइन्स के ऊपर आपको आंसर लिखने पूछा है. तो आपको इन चीजों को थीमेटिकली समझना है, देन यू विल बी एबल टू राइट एन आंसर. फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी, देन अंडरस्टैंड द थीम्स. एंड व्हाट आर द थीम्स? दिस इज द थीम. इज इकोनॉमी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ध्यान में रखना है वो समझ आ गया? हैव यू नोटेड इट डाउन एवरीवन? नहीं लिखा है तो आप लिख लें अगर कुछ आपको यहाँ छूटा है तो. रिटन? चलो नेक्स्ट पे आते हैं. यहां भी आपको स्टेट और ट्रेडर्स का रिलेशन यू शुड नो. अगेन दैट इज समथिंग वी विल कीप डिस्कसिंग. चलो अब यहां आते हैं. आज सेकेंड थीम इज polity. That was economy. Now when we talk about polity, what do we study in polity? How does a polity come up? Okay, administration important. Polity का existence ही क्यों होता है? क्या हम stateless नहीं रह सकते? क्या सोसाइटी stateless नहीं होती है? क्यों आएगा पॉलिटी? क्यों चाहिए गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन? यस, जस्टिस. ओके, दैट मीन्स मैनेजिंग सर्टेन थिंग्स. मैनेजमेंट का बात कर रहे हैं, किसी ने उस तरीके से नहीं किया तो उसको पनिश करने के लिए, किसी के साथ गलत हुआ तो उसको ठीक करने के लिए. दैट इज वेयर जस्ट द आइडिया ऑफ जस्टिस कम्स फ्रॉम. सो वी विल टॉक अबाउट मैनेजमेंट, वी विल टॉक अबाउट इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड regulations. When we are living in a society, we need rules and regulations to be followed. बेसिक चीज है. आप ये नहीं कह सकते कोई इंसान है इस जमीन पे खेती कर रहा है, कोई आके अगले दिन उसको हड़प ले, प्रॉब्लम होगी. वो आपको रूल्स और रेगुलेशंस तो चाहिए ना कि भाई ये इसके हक की चीज है, ये इसके हक की चीज है, और ये नियम कानून है हमारे समाज में. तो फॉर अ बेटर फंक्शनिंग ऑफ अ सोसाइटी, व्हाट डू वी नीड? रूल्स एंड रेगुलेशंस. आपने रूल्स बना दिए, कैसे वो रूल्स को इन्फोर्स कराएंगे? देयर शुड बी एन अथॉरिटी हु इज गोइंग टू मेक श्योर दैट दीज रूल्स आर बीइंग followed, and that is where polity comes into place. That is why you need an authority which can ensure that rules and regulations are being followed, and in the case they are not being followed, there is a system of justice, so that the person who is not following it can be punished, the person who has been wronged can be given justice. Is this clear? So this is why we need a पॉलिटी. हम बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीजों पे बात कर रहे हैं, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, हम पढ़ लेते हैं इकोनॉमी है, सोसाइटी है, पॉलिटी है, क्यों जरूरत है, कैसे इन चीजों का ओरिजिन हुआ है. वी डोंट थिंक अबाउट इट.
ओके तो इसलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं कि क्यों हमको इसको सोचने की जरूरत है. इफ यू अंडरस्टैंड दिस, व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल सिस्टम, अगेन अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बिकम क्लियरर. हमने किसी को रूल्स और रेगुलेशंस को एनफोर्स करने का जिम्मा दे दिया. आपने किसी को दिया, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट अ मोनार्किकल सेटअप. अब आप उस पर कंट्रोल कैसे करेंगे? अपनी मर्जी से उसने रूल्स बनाने शुरू कर दिए, अपनी मर्जी से उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया. बिकॉज व्हेन पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन वन हैंड और इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, दैट विल बिकम अ प्रॉब्लम from, and this is from where democracy comes from. So there is this whole historical process from monarchical setups to democratic setups. So basic idea क्या है? Enforcement of rules and regulation, appointing a particular authority to make sure that rules and regulations are being followed. But what if that authority turns corrupt? So you need to ensure accountability. उस अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप हटाए भी जा सकते हैं. एंड दैट इज वेयर डेमोक्रेटिक आइडियल्स विल कम टू दी प्लेस. समझ आ रहा है ये बेसिक चीज कि कैसे डेवलपमेंट होता है. तो डेवलपमेंट होगा कैसे पॉलिटी का? फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. अब उसका सेटअप अलग अलग हो सकता है. दे कैन बी मोनार्किकल. मोनार्किकल क्या है कि एक के हाथ में है सारा पावर. ओलिगार्किकल हो सकता है. ओलिगार्किकल क्या हो सकता है कि ओलिगार्किकल का मतलब क्या होता है कि देयर आर अ फ्यू पीपल जिनके हाथ में वो सारा पावर है. डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेटिक हो सकता है वो सेटअप कि हर किसी के हाथ में पावर है. वी चूज आर रिप्रेजेंटेटिव. तो वहां पे क्या है? ये नहीं है कि इसको चूज कर लिया तो हेरिडेटरी है कि इसके बाद ये आ गया, इसके बाद ये आ गया. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसके बीच में आप बदल सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को इफ यू डोंट लाइक देम. सो दैट विल इंश्योर अकाउंटेबिलिटी. ओके, अब आते हैं हम कि हमको ध्यान में रखना गया. ये तो हमारा कॉन्सेप्ट्स हो गए जो हमको ये चीज को समझना चाहिए. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटी, सो हु इज द पॉलिटिकल हेड? कौन है? हिस्टोरिकली अगर हम देखें, सो हिस्टोरिकली नॉट ओनली इन इंडिया, एट द वर्ल्ड स्केल mostly polities have been monarchical. In certain cases they have been oligarchical as well, but mostly they have been monarchical. So now when we are talking about it, what should we know? What do we need to know about? Important rulers. You don't need to mug up the names of all the rulers if you are studying for UPSC examination. आपको ध्यान क्या रखना है? Important rulers, क्योंकि UPSC सबके बारे में नहीं पूछती है. Important rulers here, their important political contribution, और इससे कहीं ज्यादा important है their cultural contribution. In every year you will find question, in prelims at least or in mains also you will find questions on cultural contribution of important rulers. Mains में हर साल आपको नहीं पूछता है, but they ask it in an interval of 1 or 2 years. 2022 में आपको एक सवाल पूछा था, पहला जो सवाल था, कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता एंड चोल रूलर्स. That was a very direct question they had asked. So when you are studying polity, आपको पढ़ना क्या है? Important rulers, political contribution उनका पढ़ लेंगे. It is not that important from examination perspective. This is the area which is very important. Cultural contribution. Cultural contribution में क्या क्या आएगा? जब हम कल्चर अभी डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कल्चरल कंट्रीब्यूशन में क्या क्या आएगा. ठीक है, तो ये पहली चीज है जो आपको ध्यान रखनी है. व्हाट एल्स कैन यू रिमेंबर? Administration. What is the administrative setup? If you look at the examination, they ask you, मेंस में तो इस पे सवाल नहीं आते, प्रीलिम्स में सवाल आते हैं ऑन स्पेसिफिक टर्म्स. ओके, सो टर्म्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव system, that is something which is being asked repeatedly if you look at prelims question papers. Okay, so this is what you have to understand. What is the administrative system? Again, administration भी जब हम आपको पढ़ाएंगे, हम एक बार आपको administration समझाएंगे and you will understand that more or less that is the process which is being repeated again and again. नाम बदल जाएगा उसका. For example, when we talk about Kushan period, the term used is
Satrap system. You come to Gupta period, you will start using the term feudal order. You come to, let's say, medieval period, you will start Delhi Sultanate, you will start using the term Iqtidari. You will come to Mughal period, you will start using the term Mansabdari और जागीरदारी. फंक्शन मोर और लेस वही रहते हैं. एक बार जब आप वो फंक्शन समझ जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे काम करता है. क्लैरिटी है इस पे? तो इसको हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे. दूसरा हम यहाँ क्या ध्यान रखेंगे? नेचर क्या है? दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वी नीड टू नो. Whether the empires are centralized or decentralized, what is the nature? Who has the power? That is something that we need to understand. Again, this thing also you need to understand once. Once you have understood it, in Mauryan period I'll explain it to you. उसके बाद से आपको उस चीज को पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि वही सिस्टम आपको काम करेगा. ठीक है, क्लैरिटी है? तो इसको यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे. Is polity clear to you? When we are talking about polity, to make sure that things are properly being governed, they also needed an army. तो आर्मी से रिलेटेड चीजों को भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ये आपका पॉलिटी का ही पार्ट हो जाएगा, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में, that how they are making sure that they have a permanent standing army. See, when we talk about the idea of a permanent standing army, ये चीज भी हम अज्यूम करके चलते हैं आर्मी तो होगी, करते हैं ये चीज कि भाई वॉर लड़ रहे हैं आर्मी होगी. बट क्या सबके पास में परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी हो सकती है? When we talk about the first permanent standing army, it is coming during महाजनपद period. क्यों महाजनपद पीरियड में आ रहा है? परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी का मतलब क्या होता है? परमानेंट बेसिस पर आपने आर्मी रखी हुई है. आप पूरे साल तो जाके युद्ध नहीं लड़ रहे, मगर आपकी परमानेंट आर्मी का मतलब क्या है? यू विल पे देम द होल ईयर. So an empire or a kingdom which has that much of taxes coming in, only they will be able to recruit a permanent standing army. Otherwise अब क्या करेंगे? चलो अब वॉर लड़ना है, लोगों को ले आओ, किसानों को ले आओ, क्राफ्ट्स पीपल को ले आओ. तो पीपल हु आर नॉट किल्ड दे विल बी अपॉइंटेड. उनको क्या करेंगे? एक सीजन के लिए एम्प्लॉय करेंगे. वॉर लड़ा, अपने अपने पैसे दिए, घर जाओ. आर यू गेटिंग इट? So when we talk about the idea of a permanent standing army, this becomes very important. जहां आपको ज्यादा थ्रेट है, वहां आपको आर्मी को मजबूत रखना पड़ेगा. This is one problem which has existed in India. If you look at a question, एक क्वेश्चन में पूछा गया था मेंस में कि क्यों ब्रिटिश आर्मी जो थी वो ज्यादा मजबूत हो गई, जबकि उसमें भी इंडियन लोगों को ही रिक्रूट किया था उन्होंने. क्योंकि परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी थी उनकी. Those people were trained over time. That idea of discipline was there. They were specialized in that particular art. On the other hand, people who do not have a permanent standing army, उनके पास में क्या स्पेशलाइजेशन नहीं है. आप अगर हल चलाने वालों को बंदूक पकड़ा दो तो वो कैसे लड़ेंगे? It doesn't make that much of sense. So this is something which has been a problem. So here when I will talk about army, I will talk about the rulers who have introduced certain reforms in the army. And in that way, you will be able to understand why having a permanent standing army, which is skilled, which is efficient, becomes very important for the political health of an empire. ठीक है, क्लैरिटी है इस चीज के ऊपर. तो इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे. इसके साथ साथ हम एक और चीज क्या पढ़ेंगे? स्टेट का रिलेशन पीपल के साथ. रिलेशन ऑफ स्टेट विद मासेस. What is the relation with, जो हमने पहले लिख लिया है ऑलरेडी इकोनॉमी में. What is the relation with peasant? What is the relation with crafts people? What is the relation with traders? So that is something we need to understand here. ठीक है, किस तरीके से टैक्सेस ले रहे हैं. If there is a case of famine, again this is one theme which has been asked in UPSC. I don't exactly remember the year, probably in 2019. उन्होंने पूछा था कि फेमिन्स के ऊपर. तो अगर आप हिस्टोरिकल रिलेशन देखें, फेमिन्स क्या है? भूखमरी. लोगों के पास में खाने को नहीं है. So when there are cases of famines, how rulers were behaving with people? Historically, you will see whether in ancient India, whether in medieval India, rulers did not ask for taxes in that particular year. They also provided relief measures to people. कि क्या किया? उनको खाना दे दिया, उनको अनाज दे दिया. ब्रिटिश ने क्या किया? कोई मतलब नहीं है, टैक्स तब भी देना है.
तो उस वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आई, उस वजह से कई सारे रिबेलियंस हुए. सो दिस पर्टिकुलर थीम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट to understand how states have behaved when it comes to their relation with people. Which government is going to behave in which way, whether if it's a monarchical setup, how they are going to behave, if it's a colonial setup and the ruler is imperialistic, how they are going to behave. तो ये सारी चीजें भी हमको यहाँ पे समझ में आती हैं. ये सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जिसके ऊपर आपको मेंस में सवाल कई बार पूछे गए हैं. ठीक है, तो इसलिए इन थीम्स को आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है. इज इट मेकिंग सेंस? So this is something you need to study in polity. Now when we are talking about the polity में भी बात कर रहे हैं तो सब themes यहाँ पे आएंगे. आर्मी में लोग कौन है, किस तरीके का वेपन है, जब हम वेपन की बात कर रहे हैं तो कौन सा मेटल है जो यूज हो रहा है, these things will come there. ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज की चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है कि ब्रॉन्ज का इक्विपमेंट है, आयरन का इक्विपमेंट है या किस चीज का इक्विपमेंट है. ऑल दीज थिंग्स यू शुड नो हियर. इज दिस मच क्लियर? Now let's come to the third theme, which is society. What do we study in a society? What kind of society it is? तो किस तरीके का डिवीजन है उस सोसाइटी में? So there can be a division on economic basis. इकोनॉमिक में क्या होगा? Whether people are rich or they are poor. So whether there is an economic divide in the society, where there is a social hierarchy based on the idea of wealth, वो है या नहीं है, that is something we need to know. See, अगर हम बहुत बेसिक टर्म्स में बात करें तो जनरल जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो किस चीज पे होता है? वेल्थ के बेसिस पे होता है, जेंडर के बेसिस पे होता है, एज के बेसिस पे होता है, रिलीजन, बहुत सारे अब इसमें फैक्टर्स आ जाएंगे, रिलीजन है आपका, फिर उसके बाद रेस है, ये सारी चीजें ऐड होती जाती हैं. बट इफ वी टॉक अबाउट एनी रिलीजन, लेट्स से कोई भी रिलीजन है, कोई भी आपका रेस है, किसी भी जगह के लोग हैं, अगर आप उस जगह पे डिस्क्रिमिनेशन देखेंगे हिस्टोरिकली, यू विल फाइंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन दीज थ्री एंगल्स. इन एनी रिलीजन, इन एनी रेस, यू विल फाइंड दैट डिविजन हैज बीन देयर, डिस्क्रिमिनेशन हैज बीन देयर ऑन द बेसिस ऑफ owning the wealth, on the basis of one's gender, on the basis of one's age. एज के बेसिस पे क्यों करें? डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड नहीं करते. अरे तुम तो बच्चे हो, तुम्हें क्या पता, बड़ों की बात सुननी चाहिए. सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट इज प्रेजेंट इन अ society. So when we talk about a society, we need to understand what is the hierarchy based on wealth, whether there is an economic hierarchy or not. How do we understand it? कि किसी सोसाइटी में इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में या इन जनरल भी. हाउसेस, आपका घर कैसा है, वेदर इट्स अ वन रूम्ड हाउस और इट्स अ मल्टी रूम्ड हाउस, वेदर इट्स अ वन स्टोरी हाउस और मल्टी स्टोरीड हाउस, कितनी मंजिल है, कितने कमरे हैं, उन चीजों को आप किसी भी जगह पे, आप मॉडर्न सोसाइटी में देखें, आप एंशिएंट पीरियड में देखें, आप मिडीवल पीरियड में देखें, अगर हम हाउसिंग पैटर्न को देखते हैं तो हमको इकोनॉमिक डिवीजन समझ में आता है. आप किसी भी शहर में जाएं, आपको उसी शहर में एक जगह स्लम्स मिल जाएंगे वेयर पीपल इवन डोंट हैव बेसिक फैसिलिटी ऑफ अ वॉशरूम, and you go to a posh area and you will find bungalows where the number of servants are more than the people living in it. So that tells us about the economic division. So we can understand the economic disparity present in a society based on their housing pattern. तो आप उस चीज को देख लें, आपको उससे समझ में आ जाएगा. तो इस चीज को हम हड़प्पा में जैसे पढ़ेंगे, हम आगे इन चीजों को आपको पढ़ाएंगे. तो पहला जो हम डिस्क्रिमिनेशन समझते हैं वो हम किससे समझते हैं? हाउसिंग पैटर्न से समझते हैं. दूसरा हम किससे समझते हैं? हिस्टोरिकली हम समझते हैं ब्यूरियल से, क्योंकि हमको पता नहीं उन्होंने शादी ब्याह में कितने पैसे खर्च किए. ब्यूरियल से हमको समझ में क्या आता है? व्हेन वी आर एक्सकवेटिंग द एरिया, और ब्यूरियल है, लेट्स से हमको 2 ब्यूरियल्स मिले, एक में ज्वेलरी है, इसमें भी लोग अपने साथ लोगों को दफना देते थे, जो डेड बॉडी होती थी उसके साथ चीजों को दफना दिया करते थे. अब किसी दोनों में ज्वेलरी रखी है, लेट्स से किसी में सोने की रखी है, किसी में कॉपर की रखी है.
तो क्या समझ में आ रहा है? हायरार्की है, inequality है. So when you look at the burials, you can also understand that there was an economic disparity prevalent in the society. Now this is something thematic. ये बहुत बेसिक चीज है. अब आप सोसाइटी में आपको रटने की जरूरत नहीं है. हमको बेसिक आइडिया है कि भाई कोई भी सोसाइटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हैज बीन देयर हिस्टोरिकली. तो उसमें हमको याद तो करना नहीं है कि हड़प्पन सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी कि नहीं, इसमें इनइक्वालिटी थी कि नहीं. इनइक्वालिटी तो है ही. अब जब इनइक्वालिटी है तो कैसे हमको पता लगेगा? इवन दिस यू डोंट नीड टू मग अप, क्योंकि जब हम इनइक्वालिटी का बात कर रहे हैं, वेदर इट विल बी बेस्ड ऑन हाउसिंग पैटर्न और ऑन burials, so you know the concept. Now if you have to write it in the examination, can you not write it down? You don't need to mug it up ना. आपको दो चीजें पता है कि हमको हिस्टोरिकली इन्हीं दोनों चीजों से इनइक्वालिटी का, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का पता लग रहा है. लिख दिया आपने. जब सोसाइटी के बारे में उन्होंने पूछा, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है. कोई पीरियड में जाके वहां अलग से रटने की जरूरत नहीं है. आपको बेसिक यही चीज है, वो हर पीरियड में एप्लीकेबल है. इज दिस क्लियर? चले. सो दिस, बाय दिस you will be able to understand the difference of wealth. What about gender? How can you understand that? अगर हम दूसरे थीम का बात करें, अगेन विमेन के ऊपर. अब अगर आप देखें तो एट नेशनल लेवल ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट इट दैट वी नीड टू एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन इन मेकिंग ऑफ हिस्ट्री. So there is this line by a very famous writer, Virginia Woolf. She said that in history most often anonymous was the woman. क्यों बोला उन्होंने anonymous was the woman? क्योंकि उनका contribution acknowledge नहीं किया गया. Now we are on that stage that we are more accepting towards it, that contribution of women also needs to be acknowledged in various sectors. Now when we are talking about it historically, what has been the case? Women have been discriminated against. Again, not only in India, at world scale you will see that women have been discriminated against, be it in acknowledging their contribution, be it in providing them opportunities. तो हम अगर हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखें और हमको थीम्स देखनी हो, कैसे पता लगेगा कि उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, किस सोसाइटी में विमेन का क्या कंडीशन है. अगर हम आपको दो बेसिक चीजें बताएं, दो चीज यहाँ पे आप ध्यान में रखिए, ये आपको सोसाइटी में भी बहुत हेल्प करेगा. आपको कुछ और यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैरिज एंड प्रॉपर्टी, these are the two themes that you should remember. When we talk about marriage, what kind of marriage is present in a society? Whether the woman has a choice in getting married or not. That will tell you a lot about the condition of women in a particular society. For example, if in a society polygamy is prevalent. Polygamy क्या है? One man marrying multiple women at the same time. एक इंसान कई शादियां कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर उसके फर्स्ट वाइफ की डेथ हो गई तो कर लिया शादी, तो वहां पे भी हम बात करेंगे द मैन हैज बीन मैरिड ट्वाइस, मगर वो पॉलीगमी नहीं. पॉलीगमी का बेसिक टर्म क्या है? वन मैन मैरिंग मल्टीपल वुमेन एट द सेम टाइम. ओके, तो इफ अ सोसाइटी इज अलाउइंग पॉलीगमी, द कंडीशन ऑफ वुमेन इज गोइंग टू बी मिजरेबल. व्हाई? Men were the ones who were controlling property. So a woman is dependent upon a man to get a share in decision making or for any kind of economic assistance. तो ये तो अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है. मोनोगमी हो उसमें भी प्रॉब्लमेटिक है कि विमेन के पास में वो एक्सेस नहीं है. पॉलीगमी होगा तो और भी ज्यादा बुरी हालत होगी, बिकॉज दे विल compete against each other to get the economic or in general individualistic attention of the man they are married to. So if you look at the types of marriage a society is allowing, that will tell you about the situation of women in that society. अगर आप बात करें forms of marriage prevalent in ancient India, so monogamy was there, polygamy was there, polyandry was there. तो ये सारी चीजों में आप देखेंगे women का situation बहुत बेहतर नहीं है. अगर आप ये देखें कि मोनोगमी में भी किस किस तरह की शादियों को अलाउ किया है, सो देयर इज दिस मैरिज वेयर राक्षस विवाह है, पैशाच विवाह है.
and they were legally recognized marriage forms of marriage where one can rape a woman and they will get a legal right to marry her, where one can abduct a woman and they will get a legal right to marry her. So something that should be a punishable crime, that was recognized as a legal form of marriage. It is not that people supported that, but that was listed as a form of मैरिज. तो कितने एक्सटेंट पे हो रहा था वो अलग मसला है, मगर उस चीज को लिस्ट करना अपने आप में हमको क्या दिखा रहा है कि द सिचुएशन ऑफ वुमन वाज नॉट वेरी गुड, हर चॉइस वाज नॉट वेरी मच रिस्पेक्टेड इफ वी टॉक अबाउट इट इन जनरल टर्म्स. तो किस तरीके का मैरिज है ये हमको दिखा सकता है कि उस सोसाइटी में वुमेन का सिचुएशन क्या है, वेदर दे आर अलाउड टू रीमैरी और नॉट. In the case of widow remarriage, we had to come up with a law because women were not allowed to remarry. Sati was a very prevalent case. तो ये सारी चीजों को हम, ये सब चीजें क्या है, ये सारी चीजें मैरिज से जुड़ी हुई. जब मैरिज से जुड़ी हुई है तो हमको इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जब एक सोसाइटी में समझ आ गया तो हमको कंडीशन ऑफ वुमेन उस सोसाइटी में समझ में आ जाएगा. क्लैरिटी है इस. तो जब हम विमेन का देख रहे हैं, जेंडर रोल्स देख रहे हैं, तो हम क्या देख सकते हैं एक थीम को. देयर आर अ लॉट ऑफ थीम्स बट दिस इज समथिंग व्हिच इज एप्लीकेबल इन एवरी सोसाइटी. दैट इज व्हाई आई एम गिविंग इट हियर इन द फ्रेमवर्क. Okay, so if you look at the institution of marriage, you can determine the situation of women in a particular society. If you look at the idea of property, so in the context of women क्या होता है situation, women and property, women as property. So women have also been treated as property in a historical manner. एक ये मसला है, इस चीज को आप समझ सकते हैं. दूसरा, whether women had the right to property or not. So here also you will see that there is a term which we'll study, स्त्री धन. स्त्री धन जो है वो वुमन को रखने का राइट था. स्त्री धन क्या है? स्त्री धन इज अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी व्हिच अ वुमन acquires at the time of marriage from her natal family and from her in-laws family. अगर आप सोसाइटी में अभी भी देखें तो शादी वगैरह जब लड़कियों की होती है तो उनको कुछ जेवर दे देते हैं. उनका जब वो, क्योंकि पेट्री लोकेलिटी नॉर्म है, तो जब वो अपने पार्टनर के घर जाती है तो वहां पे मुंह दिखाई तरह तरह की रस्में होती हैं, उसमें उनको कुछ चीजें दे देते हैं. सो दैट वाज द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी व्हिच वाज कंसिडर्ड स्त्री धन, एंड दैट वाज द ओनली काइंड ऑफ प्रॉपर्टी दैट वुमेन वर अलाउड टू ओन, नॉट अदर देन that. In general I am talking about it. Specific terms में आपको differences मिल जाएंगे, but in general this was the kind of property that a woman can hold. Now think about it. For that you need to get married. If a woman chooses not to get married, she will not get access to Stri Dhan. So that is also going to tell you a lot about the kind of expectations a woman has, that is there from a woman in a society. That will tell you about the condition इन दी सोसाइटी. क्या बराबर हक है उनको प्रॉपर्टी ओन करने का? नहीं है. इनहेरिटेंस राइट्स किसको मिल रहे हैं, किसको नहीं मिल रहे हैं. तो उस सब से आपको डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर यू कैन अंडरस्टैंड. इज दिस क्लियर? तो इन दो थीम्स को आप किसी भी सोसाइटी में समझ लीजिएगा, उससे आपको वहां पे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. ठीक, चले. एज वाले में तो कुछ ऐसा नहीं है, तो बहुत जनरल चीज है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड नहीं किया जाता. जनरली इफ यू टॉक अबाउट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इट हैज हिस्टोरिकली बीन कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ ओल्डर मेन. विमेन को भी सिचुएशन नहीं सोशली डिस्क्रिमिनेट किया है, so they were not also given the right to make decisions in multiple cases. ठीक है, तो that is there. Now coming to society specifically in ancient Indian context, here one other thing that you will have to study is वर्ण सिस्टम. ठीक है, तो वर्ण सिस्टम के जो डिटेल्स हैं उसको भी आपको यहाँ पे पढ़ना. नाउ अगेन व्हेन यू हैव स्टडीड इट इन वन पर्टिकुलर सोसाइटी, इन वैदिक एज वी विल टॉक अबाउट वर्ण सिस्टम. दैट इज गोइंग टू रिमेन मोर और लेस द सेम इन द कमिंग पीरियड्स एज वेल. वहां पे भी हमको उसके बारे में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है. दूसरा आपको यहाँ पे पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ जातिज और कास्ट. ये आपको आपने सोसाइटी में भी पढ़ा होगा, सोसाइटी में भी आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वर्ण एंड अ जाति. ओके, सो दिस इज समथिंग यू विल स्टडी हियर. व्हाट अबाउट पीपल हु डू नॉट बिलोंग टू वर्ण सिस्टम?
on Arya people who are not Arya. What about them? तो ये भी हमारा एक उसमें थीम होगा. अगेन यू नीड टू स्टडी अबाउट दीज पीपल ओनली वंस. उसके बाद से ये चीज रिपीट ही होगी हर पीरियड में. तो सोसाइटी हर जगह पढ़ने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा. क्लैरिटी है. कुछ नया आएगा देन वी विल स्टडी अबाउट दैट. अदरवाइज दीज थिंग्स आर गोइंग टू रिमेन दी सेम. सो दीज थिंग्स यू नीड टू स्टडी. यू नीड टू स्टडी अबाउट वुमेन. वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया. यू नीड टू स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. अगेन दैट इज समथिंग व्हिच हैज बीन रिटन हियर. इसको लिख लें आप. What are the kind of social practices? When you will talk about the marriage, you will talk about all the social practices as well. Sati hai, widow remarriage hai ki nahi hai. When you will talk about marriage, when you will talk about property, you will talk about inheritance rights. What are the kind of laws that are prevalent in that society when it comes to formulation of laws regarding property? Okay, so those things will be part of this sub theme only. Is this much clear? चले, ये हो गया हमारा society. आगे आते हैं रिलीजन पे. ये आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक. अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम रिलीजियस फिलोसफी. तो क्वेश्चन बेसिकली किसके ऊपर पूछा जाता है? फिलोसफी के ऊपर. कि फॉर एग्जाम्पल इन ब्राह्मणिज्म व्हाट इज द फिलोसफी, इन बुद्धिज्म व्हाट इज द फिलोसफी, इन जैनिज्म व्हाट इज द फिलोसफी, when you talk about Islam what is the philosophy there, in Bhakti movement what is the philosophy, in Sufi movement what is the philosophy. So on this particular theme every year you will find questions. In some years you will find more than 3 to 4 questions only on this particular theme. So this becomes very important. Okay, so study the religious philosophy of various religions as well as movement. This is a very important theme. इसको आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा. क्या लिटरेचर है. अब यहीं पे कल्चर आपको ओवरलैप कर जाएगा. कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़ा हुआ क्या लिटरेचर. अगेन मोर और लेस इन एवरी ईयर यू विल फाइंड अ क्वेश्चन ऑन लिटरेचर. ओके, तो इस चीज को भी आप यहाँ पे पढ़िएगा कि कौन सा रिलीजन. देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट लिटरेचर, लिटरेचर इज ऑफ वेरियस काइंड. देयर इज रिलीजियस लिटरेचर, देयर इज नॉन रिलीजियस लिटरेचर. दोनों चीजों पे आपको सवाल पूछा गया है. बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो रिलीजियस लिटरेचर पे भी. आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. यू विल फाइंड क्वेश्चन ऑन लिटरेचर ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेटिव ईयर. ठीक है. When you talk about mains examination also, a question on Sangam literature has been asked in 2013 or 14. They had asked one question. In 16 or 17, I am confused about the year, they have asked a question on Persian literature. So they in 1 year they have asked you question on foreign travelers account. So they keep asking question on literature, be it in prelims or be it in mains examination. Okay, so this is also a theme which becomes very important, which you have to remember. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं एक अलग आप टेबल रखिए. उसमें क्या करें, हर पीरियड में आपको कोई लिटरेचर पढ़ाया गया, उसको लिटरेरी वर्क एंड दी कंपोजर कीप नोटिंग इट डाउन. तो यू विल ऑलरेडी हैव अ प्रिपेयर्ड नोट्स. आपको बाद में अलग से उस चीज को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड ऑन लिटरेचर. So why not make a separate list of it so that you can revise it just before the examination. Okay, so that will help you out a lot. So do this. Important sites of cultural importance, sites of इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. तो कोई जगह है जो कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी रिलीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए. कोई ऐसी साइट है जिसका कोई और कल्चरल इंपॉर्टेंस है, ये हम करते चलेंगे साथ में, बट यू नीड टू रिमेंबर this as well. When we are talking about literature, कोई तो लैंग्वेज होगा जिसमें उसको कंपोज किया होगा, तो वो लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए. उस लैंग्वेज के साथ साथ you need to know about the script as well. What is the script? Script और लैंग्वेज में क्या फर्क है? What is the difference between a script and a language? देवनागरी जी.
जैसे हम अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, अंग्रेजी लिख रहे हैं, तो इसका रोमन है स्क्रिप्ट, लैंग्वेज है इंग्लिश. टू व्हेन वी आर स्पीकिंग we are using a particular language. When we are writing we also need a script, कि जो हम बोल रहे हैं उसको लिखने का तरीका क्या है. तो जो लिखने का तरीका है वो क्या है, वो है लिपि या स्क्रिप्ट. ठीक है, तो you need to know about the script, you need to know about the language. Again this is something upon which UPSC has been asking questions. खासकर अगर आप देखेंगे तो अशोकन जो इंस्क्रिप्शंस हैं उससे रिलेटेड आपको लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का क्वेश्चन पूछा जाता रहा है. Is this clear? So this is something you need to know. When we are talking about this again sites, this is again very very important. खासकर प्रीलिम्स में आप देखेंगे हर दूसरे साल आपको एक सवाल पूछा जाता है, तो इस थीम को भी हमको कल्चर में पढ़ना है. इसके अलावा when we talk about it, what comes here? Architecture. Again, what kind of architecture? So palaces can be there, religious structure can be there. So religious as well as non-religious. Religious में क्या होगा, टेम्पल हो जाएगा, स्तूप हो जाएगा, मॉस्क हो जाएगा, ये सारी चर्चेस हो जाएंगे. मॉडर्न में आप आएंगे क्योंकि क्रिश्चियनिटी वाज नॉट वेरी पॉपुलर अर्लियर. So in India we are talking about, so these structures are going to come there. When you are talking about non-religious, so palaces can be there, minars can be there, pillars can be there. So all these things will become part of non-religious architecture. तो इन चीजों को आप यहाँ पे पढ़ लेंगे. Again this will collide with which aspect? Cultural contribution of rulers. जो हमने वहां पे किया है उसके साथ में ये चीजें कोलाइड करेंगे, बिकॉज मेकिंग ऑफ दिस आर्किटेक्चर विल ऑल्सो बी फैसिलिटेटेड बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स ना. कौन बनाएगा बड़े बड़े मंदिर? जिसके पास पैसा है. पैसा किसके पास है? लार्जली जिसके पास टैक्स आ रहा था, और टैक्स आ रहा था स्टेट के पास. तो द स्टेट इज गोइंग टू फैसिलिटेट मेकिंग ऑफ सच आर्किटेक्चर. इंडिविजुअल्स कांट डू इट ना. उतने बड़े बड़े अगर आप मंदिरों को देखें तो इंडिविजुअल्स कैसे करते उस चीज को? तो उसके लिए क्या जरूरी था कि एक स्टेट हो और स्टेट उसको फैसिलिटेट करे. सो हियर दिस विल आल्सो बिकम पार्ट ऑफ द cultural contribution of rulers. If you talk about literature also, in most of the cases that will become cultural contribution of rulers. How? Let's say I say कि मेरे को कुछ किताब लिखनी है आज. अगर मुझे किताब लिखनी है तो I need that source of income. Now by writing a book I am not going to get instant money. What will I need? In present times we go for government grants. Mostly we go for government grants. अगर हमारे पास उस तरीके का वेल्थ ना हो तो इस वक्त में क्या होता था? रूलर ही तो करेगा ना पेट्रोनाइज, जिसके पास में इतना वेल्थ है. So that will also come under the cultural contribution of rulers. उस थीम को भी प्रीलिम्स में भी उन्होंने रिलेट करके पूछा है. कई सारे क्वेश्चंस पूछे हैं जहां पे उन्होंने दिया है कि ये पर्टिकुलर राइटर वाज पेट्रोनाइज्ड बाय दिस पर्टिकुलर रूलर. तो क्या करेंगे? गलत नाम दे देंगे. किसी रूलर ने मान लीजिए चंद्रगुप्त सेकंड पेट्रोनाइज्ड कालिदास, तो उसके जगह पे समुद्रगुप्त लिख के दे देंगे. सो यू नीड टू नो अबाउट द कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ रूलर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर एज वेल. इज दिस क्लियर? सो दीज आर द थीम्स ऑन विच क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. Okay, so here architecture, then what else can we do here? We can do art. Art में क्या हो सकता है? Sculptures can come here. तो sculptures किस तरीके की मूर्तियां बना रहे हैं, whether it is of stone, whether it is of bronze, metal का है या stone का है, that will come under art. In art you can talk about coins as well. तो आप यहाँ पे coins की बात कर लीजिएगा. तो इन चीजों को यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं. वी कैन टॉक अबाउट पेंटिंग्स हियर. दीज आर दी सब थीम्स. So what are the kind of paintings? When we are talking about this culture में हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगा. किस तरीके का साइंस है, किस तरीके का टेक्नोलॉजी है, that will also make a sub theme here. Okay, so these are going to be our sub themes. Literature, art, architecture, painting, science, technology, these things will come there. Now think about it. If you have this framework, if you remember this much, that these are the sub themes, and they ask you a question on contribution of Chola and Gupta kings,
आपका आंसर तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, आपके पास थीम्स तो है ना, आपको बस क्या करना है, एग्जाम्पल लिखना है, because you already know that these things can be patronized by rulers only in general if we talk about it. तो कोई हमको टेम्पल है, अब गुप्त पीरियड में टेम्पल्स बना रहे थे, तो जाहिर सी बात है रूलर्स का होगा ना, उन्होंने किया है पेट्रोनाइज। तो आपके पास आपका फ्रेमवर्क ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना है, आपके पॉइंट्स ऑलरेडी हैं, 1 2 3 4 जो भी आपका पॉइंट है। अब आपने हेडिंग डाला पहला आर्किटेक्चर, आपको उसमें क्या करना है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल लिखना है सिर्फ कि गुप्त पीरियड में कौन सा टेम्पल था, चोल पीरियड में कौन सा टेम्पल था। यू डोंट हैव टू सिट देयर एंड थिंक अबाउट इट कि हम लिखें क्या। आर यू गेटिंग इट? आपसे इकोनॉमी पे क्वेश्चन पूछ दिया, you already have those 4 sub points कि we have to write about agriculture, then we have to write about pastoralism, then craft production, then trade. There also you have sub themes. तो आपको प्रिपेयर क्या करना है, ये जो अभी हमने आपको फ्रेमवर्क दिया है, आपका आंसर राइटिंग बहुत हद तक इससे प्रिपेयर हो जाएगा। Are you getting it? तो इस सब थीम्स को आप यहाँ पे ध्यान में रखें, it will help you a lot in structuring your accumulated knowledge, because see when you are reading, let's say we are studying Harappan period, तो आप उसमें इन्हीं, आप अपने सामने ये रखिए सब थीम को रिवाइज करते हो और आप देखिए अच्छा इकोनॉमी में ये पॉइंट्स होते हैं, हमको हड़प्पा के बारे में क्या पता है, या हमको वैदिक के बारे में क्या पता है, पॉलिटी में ये सब पॉइंट्स होते हैं, व्हाट डू वी नो अबाउट दैट, और इन सोसाइटी दीज आर द सब थीम्स दैट वी नीड टू नो अबाउट, व्हाट डू वी नो अबाउट इट इन हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट, or in religion what do we know about it, or in culture what do we know about it. If you are able to recall that information, you are prepared. आपको इस चीज को इस तरीके से करना है। जब रिवाइज करें तो हमेशा आप एक्टिव रिविजन करें, पैसिव रिविजन ना करें। What is the difference between active revision or passive revision? In psychology there is a concept of active revision and a passive revision. See, आपने क्लास में पढ़ा, समझ आ गई चीजें आपको, आपने नोट्स में लिख लिया, अब आप घर गए, जब आपने उस चीज को खोला और आप नोट्स से, हम कैसे रिवाइज करते हैं जनरली, नोट्स से रिवाइज करते हैं, आपने नोट्स खोला तो आपको समझ तो ऑलरेडी आया हुआ है ना, तो जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, मगर जब उस पर सवाल पूछ दिया जाता है तो हम जवाब नहीं दे पाते। क्यों? जब नोट्स खोल के रिवाइज कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं हमको समझा कितना है, हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको याद कितना है। When we do act, so that is called passive revision. Active revision क्या होता है, आपने कॉपी बंद किया, आप अब ये देख रहे हैं कि अच्छा हड़प्पन सिविलाइजेशन रिवाइज किया, what do I remember about the economy? So in economy we have to remember about crops. What are the crops that I know about? What are the techniques that I know about? How the state, was the relationship between the peasant and the state? That is active revision. अगर कहीं आपको कुछ भूल गया है, आपने नोट खोला, आपने देखा, आपने वापस उस चीज को रिवाइज किया। So by doing it this way, you will be able to recall the information. You will know where you are lacking. Okay, so try doing it this way, and you already have this sub theme. So try practicing it accordingly. It will help you in answer writing, क्योंकि आंसर में आपका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, and this is something which will give you a structure. Second thing, it will also help you in revision, in saving time. तो आप हर पीरियड का, आप सोसाइटी एक बार पढ़ लिया, मोर और लेस तो वही रहा है, सती स्टार्ट हुआ तब से लेके तो कॉलोनियल पीरियड तक था ही, जब लीगली बैन किया तो उसके बाद कम होंगे ना केसेस, तो अब किसी और पीरियड में पढ़ने का जरूरत क्या है, पता है सोसाइटी का पार्ट है। विडो रिमैरिज इट वाज नॉट अलाउड, तो हर पीरियड में हमको सोसाइटी खोल के नहीं रिवाइज कर रहे हैं, हमको पता है कि ये सोसाइटी का पार्ट होता है, ये थीम्स है, एंड दिस इज समथिंग व्हिच वाज prevalent. So it will also save you a lot of time. आपको कहां पे अलग पढ़ना है, जहां पे चेंज होगा, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी, तो कौन सा रूलर आया, उसका क्या कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट इज समथिंग विच विल चेंज। अदरवाइज मोर और लेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीजियस फिलोसफी, दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। इज दिस मच क्लियर? So this is the basic framework that you should have. यहां तक कोई डाउट है तो बताएं, समझ आ गई चीजें? Now we can start the syllabus. अगर आप, see this is a bit heavy duty, so tell me honestly, if you are comfortable in starting with a new topic, we can do it, otherwise we can start it in tomorrow's class.
बिकॉज एनी वे वी हैव हाफ एन आवर मोर और लेस, तो वो खत्म तो ऐसे भी नहीं होगा. टुमारो कुछ डिस्कस करना है, कुछ पूछना है तो बताएं. Anything related to history that you want to discuss, we can discuss it. NCERT पढ़ेगा, वो तो मत ही पढ़िए, काफी मोटी किताब है, उतना याद रखना, उतना रिवाइज करना अपने आप में मुश्किल है. दूसरी उसके साथ समस्या क्या है आपको कि अब उससे सवाल वैसे नहीं पूछे जाते हैं. वो किताब पहले रेलेवेंट थी, अभी अगर आप नेचर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट बुक. देयर आर सर्टेन चैप्टर्स इन योर एनसीईआरटी दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो 11th क्लास वाली एनसीईआरटी है, इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स वाली, तो उसमें यू कैन, उसको पूरा भी पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे द चैप्टर ऑन पोस्ट मॉडर्न आर्ट, वो बहुत अच्छा चैप्टर है, उसको आप पढ़ ले, वहां से आपको आंसर लिखने में हेल्प होगा. द चैप्टर ऑन टेम्पल आर्किटेक्चर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द चैप्टर ऑन पेंटिंग्स, तो इसमें भी हमको कवर टू कवर पढ़ने का जरूरत नहीं है, इसमें पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट chapters. Baki, see, for art and culture, one problem that is there is that you will have to rely on class notes a lot, because one comprehensive book from where questions can be anticipated, that is not available. तो क्योंकि क्वेश्चंस अब जो पूछ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा आपको पूछे जा रहे हैं इस तरीके के जिसमें आपको एनालिसिस चाहिए. जो बुक्स अवेलेबल हैं उसमें आप देखेंगे कि फैक्चुअल डिटेल्स है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया फिर. तो आप एनसीईआरटी वाले चैप्टर्स कर लें, बाकी आप आर्ट एंड कल्चर के लिए तो यू विल हैव टू बी डिपेंडेंट अपॉन द क्लास. आर्ट एंड कल्चर हो गया या एंशिएंट और मिडिवल भी फॉर दैट मैटर, बिकॉज यू कैन नॉट गो बियॉन्ड एनसीईआरटीज. यू कैन नॉट रीड, देयर इज दिस बुक बाय डॉक्टर रुपिंदर सिंह व्हिच इज अ वेरी गुड बुक, बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन यू कांट रीड इट. आप 1000 पेज की इतनी कॉम्प्लेक्स किताब जिसमें कि हिस्टोरिकल वोकैबुलरी यूज की गई है, you will not be able to understand it. So again, यहाँ आपके पास प्रॉब्लम क्या हो जाती है, एनसीईआरटी से आगे जा नहीं सकते, एनसीईआरटी से सारे सवाल आते नहीं, तो क्लास बिकम्स इंपॉर्टेंट. कुछ एरियाज है जहां पे क्लास इज इंडिस्पेंसिबल, तो वहां पे तो आप क्लास नोट्स पे आपको रिलाई करना पड़ेगा. एनसीईआरटी से कई सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, सो फॉर दैट इज हेल्पफुल. तो दोनों चीजों को आपको मिला के पढ़ना है. व्हेन वी टॉक अबाउट तो एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, एनसीईआरटी प्लस क्लास नोट्स. ठीक है, मॉडर्न में आप आते हैं, मॉडर्न में फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव स्पेक्ट्रम बिकम्स इंपॉर्टेंट. जो एक किताब आती है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो उसको आप प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ें. अगेन मेंस में वो हेल्पफुल नहीं होगा. क्यों मेंस में हेल्पफुल नहीं होगा, एनालिसिस पूछते हैं, फैक्ट्स नहीं पूछते हैं. उस किताब में भी आपको एनालिसिस मोर और लेस मिसिंग है. तो अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, फैक्ट्स आपको हेल्प कहाँ करेंगे, एग्जाम्पल्स में. आपने फैक्ट्स पढ़ लिए, प्रीलिम्स का नॉलेज आपको बेकार थोड़ी होगा जब हम आंसर राइटिंग करते हैं, सो वी हैव टू राइट एग्जाम्पल्स एज वेल. बट फॉर एनालिसिस यू कैन रीड, आप बिपिन चंद्रा वाली किताब पढ़ सकते हैं जो एनसीईआरटी है. बाकी क्लास में जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारा एनालिसिस आपको वहां पे समझ में आ जाता है. पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए यू कैन रीड एनसीईआरटी जो पॉलिटिकल साइंस वाली है, उसमें भी सब नहीं पढ़ना है, बिकॉज इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इफ यू एनालाइज द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, देयर आर ओनली 2 themes अराउंड व्हिच क्वेश्चंस आर रिवॉल्विंग नाउ. One is integration of princely states and second is reorganization of states. इसके अलावा आप नहीं देखेंगे कि क्वेश्चंस अब कहीं और से पूछे जा रहे हैं. स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट 2015 ऑनवर्ड्स, तो हम पिछले 9 साल देख रहे हैं, आप 14 में भी देखेंगे तो इससे अलग सवाल नहीं पूछेंगे. तो आप उन स्पेसिफिक चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं. ठीक है, इन वर्ल्ड हिस्ट्री अगेन इट बिकम्स ट्रिकी, बिकॉज कोई एक किताब में आपको चीजें मिलेंगी नहीं. इंफॉर्मेशन इज वेरी मच scattered. So for that also you will have to rely on class notes mostly. Why am I saying that? Because in post independence India and in world history not a lot of questions are asked. पहली चीज की मेंस, थैंक यू भैया, पहली चीज की मेंस का हिस्सा है. दूसरी चीज जब आप वहां पर बात करते हैं तो हर साल सवाल नहीं पूछा जाता है. एक साल पूछ लेगा वर्ल्ड हिस्ट्री से, फिर 2 साल का गैप दे देगा, फिर 1 साल पूछ लेगा, तो आप पूरी एक किताब पढ़ करके भी आपको उतना फायदा नहीं होगा. Here you have to do cost benefit analysis. Okay, so for that you need to be sure about what are the number of questions which are being asked and how you should prepare for it. तो मॉडर्न में आपको स्पेक्ट्रम हेल्पफुल होगा फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, नॉट इन जनरल. मेंस के पर्सपेक्टिव में आपको एनालिसिस चाहिए ही,
और उसके लिए आपको क्लास में आप समझ रहे हैं या बिपिन चंद्रा वाली बुक भी अच्छी है उसके लिए, ठीक है। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू डिस्कस? नहीं, नोट्स तो हम एक ही में पढ़ेंगे। नहीं देखिए, ऐसे मत कीजिए, ऐसे करने में प्रॉब्लम क्या होगा कि आपकी एक कुछ चीजें हैं जो बार बार रिपीट होंगी जब आप प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो इसलिए हमने आपको कहा आप वो एनालिसिस अगर देख लें, वो लाइव वाले में है, तो आपको उसमें बहुत चीजें समझ आ जाएंगी। उसमें मैंने 10 साल का पूरा जो पेपर है उसको एनालाइज करके वो चीज को डिस्कस किया। इफ यू टॉक अबाउट प्रीलिम्स, अगर हम एंशिएंट मिडीवल आर्ट एंड कल्चर की बात करें, क्वेश्चंस किससे पूछे जा रहे हैं मोस्टली, जो हम क्वेश्चंस की बात करें, दे आर आस्किंग यू ऑन sites of economic importance, sites of cultural importance. They are asking you about literature. They are asking you terms of economic importance, terms of cultural importance. They are asking you question on religious philosophies. यही 4 themes हैं जिसके आसपास पिछले आप 10 साल का पेपर उठाकर देख लीजिए, सवाल इसी के आसपास पूछे जा रहे हैं। So if you know these 4 themes, अब philosophy का आप अलग से क्या नोट्स बनाएंगे? फिलोसफी तो वही है, इसीलिए हमने आपको कहा लिटरेचर का एक अलग आप क्या कीजिए कि टेबल बना लीजिए। तो आपके पास ऑलरेडी है वो चीज, तो उसके लिए अलग नोट्स बनाने का क्या जरूरत है? आर यू गेटिंग इट? एक अलग से पेज रखिए, उस पर लिटरेचर रख लीजिए, एक अलग से पेज रखिए जिसपे इंपॉर्टेंट साइट्स लिख लीजिए, तो हो गया आपका रिविजन। इसी पे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रही है, एक बार आप उसको देखिएगा, उसमें पेपर का जो ईयर अलग अलग साल के पेपर्स हैं उसको भी हमने डिस्कस किया है कि कैसे इस थीम में ये दिख रहा है आपको, ठीक है। सो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ मच कॉम्प्रिहेंसिव वे। तो प्रीलिम्स में आपसे यही पूछा जा रहा है। अगर मान लीजिए आप मॉडर्न में आ जाए, तो मॉडर्न में आपको क्या थीम ज्यादा पूछा जाता है? हर साल एक्ट पे सवाल है, हर साल एक्ट पे सवाल है। तो कौन से एक्ट हैं आप उठाएंगे? पूरा 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से उठाए आपको, जो इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट है वहां तक आप किसी भी साल में उठाइए, आपको एक सवाल चार्टर एक्ट में मिल ही जाएगा। तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि क्या पैटर्न पे सवाल पूछ रहे हैं, एक्ट पे सवाल पूछ रहे हैं। तो एक्ट का जो नोट्स है उसको रिवाइज कर लीजिए एग्जाम के वक्त में, प्रीलिम्स के। अब उसके लिए वहां वो मेंस के पर्सपेक्टिव से भी वही लिखा होगा, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी एक्ट के डिटेल से तो लिखे होंगे ना। तो अब उसको अलग से लिखने का क्या मतलब है? इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के ऊपर पूछते हैं मॉडर्न में, तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज वाला अगेन एक टेबल अपना क्रिएट कर लीजिए कि क्या इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, उन्होंने क्या किताबें लिखी हैं, कोई सोसाइटी बनाई है तो वो क्या है। तो बस उसको अलग से आप इकट्ठा करते चलिए। तो वहां भी यही चीजें पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई थीम बहुत अलग है। प्रॉब्लम क्या है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, मोस्ट ऑफन वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, और फिर हमको लगता है बहुत टफ क्वेश्चन है। टफ है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट इफ यू अंडरस्टैंड द पैटर्न इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू प्रिपेयर इट। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज दिस टर्म parameter which was asked in the examination. लोग उस टर्म को क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, ना पढ़ते हैं ना सुनते हैं ना इन चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कहीं पैरामीटर लिखा है, लिखा भी है तो हम इग्नोर कर देते हैं। अब अगर हमको ये चीज, हम इसको बताएंगे आपको क्लास में, जो हमको ये चीज पता है कि टर्म्स को पूछ रहे हैं, तो विल नॉट इग्नोर इट। तो हमको वो चीज समझना जरूरी है कि थीम क्या है। एक बार जब थीम समझ में आ जाएगी, तो जब आप किताब भी पढ़ेंगे ना, तो आपका दिमाग उस जगह पे जाएगा, ओके दिस इज रिटन हियर, दिस माइट बी ऑफ इंपॉर्टेंस। हम साइट्स को जनरली इग्नोर कर देते हैं। अब अगर हमको क्लियर कट पैटर्न समझ आ गया कि हर दूसरे साल साइट पे सवाल पूछा जा रहा है, तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और वहां बेसनगर लिखा हुआ है, तो आप उस पर ध्यान देंगे ना कि कहाँ है ये, क्यों लिखा हुआ है इसके बारे में, ठीक है। तो इसलिए हमने इस चीज को, ये पूरा क्लास हमने इस चीज के ऊपर दिया है कि आप थीम्स को समझ सकें। क्योंकि जब हमको थीम समझ आ जाता है, जब हमको एग्जामिनेशन का पैटर्न समझ में आ जाता है, आपका हाफ प्रिपरेशन तो वहीं पे हो जाता है, बिकॉज यू विल नो व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू लीव। अदरवाइज यू विल कीप स्टडिंग एंड इट विल नॉट बी यू एनी रिजल्ट। तो पहले थीम को समझने के ऊपर अपना वक्त थोड़ा ज्यादा लगाएं, उससे आपका प्रिपरेशन बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। और कुछ बताएं अगर पूछना है तो। क्लैरिटी है चीजों में, है नहीं है? चलें, इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। जो ये हमने थीम्स लिखाए हैं, प्लीज कीप रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन। कीप दिस पेज विद यू whenever you are studying. Keep this page with you so that you know what to study and how you have to revise it. कोई भी पीरियड पढ़ रहे हैं, इस पेज को अपने साथ में रखना है, ठीक है। चले,
तो we can stop it here then. चलो, have a good day. कल मिलते हैं, कल we'll start the topic.